आलोक जी है ना? हाँ हाँ जी, है। ठीक। हाँ जी सर। हाँ जी सर, आपकी फोटो नहीं दिख रही थी एक्चुअली मेरे पैनल पे। फोटो तो अरुण जी ने लगा रखी है इधर। मैं नहीं दिख रहा था। हाँ वही कह रहा हूँ। करिए सर। स्टार्ट करें? हाँ सर, स्टार्ट करिए सर। Good evening, members. You are in today's seminar. You are all welcome. I, Raman Kumar Gupta, on behalf of Northex ES Study Circle, welcome you all in the today's seminar that is on the overview of accounting standard, IND-AS, and the latest amendment relating thereto. So this seminar would last for 2 hours, 6 to 8, and after that there would be a 15 minutes Q&A session in which you can ask your questions and and you will get the answer. So today in our among us, Mr. C. Alok Garg, the faculty is there for today's seminar, and he I just having his brief profile for सर प्रोफाइल सामने स्क्रीन पे आ रही है। मुझे तो नहीं दिख रहा। So he has a bunch of degrees. CA Alok Garg ji, he is a CA, CS, a diploma in IFRS, UK, and certificate Indian accounting, Indian AS ICI and BCom honors. He is completed graduation in BCom honors from University of Delhi and qualified chartered accountant, all top 3 rank with accountancy, qualified company secretary, diploma in IFRS from ACCA London, United Kingdoms, and he has authored a comprehensive book on in IND-AS, the treatise on IND-AS explained with practical examples and MCQs. Co-authored a comprehensive book on IND-AS and insight into Indian accounting standard with CA Amarjit Chopra and CA Dr. Sanjeev Singhal ji. Developed material on IND-AS and IFRS for CA final under new scheme of ICI. He's reviewed material on Bhutanese accounting standard drafted for Bhutan on behalf of ICI. He's having relevant experience in the field of financial reporting, consolidating, auditing for more than 13 years, multinational Indian corporate and CA firm like Bharti. It is not good to speak the name of the clients. Presently working as a general manager finance, heading and financial reporting consolidation and IFC's vertical of Bharti Infratel Limited, a listed telecom company. So sir, I welcome you and I request you to start your deliberations. वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। देवेंद्र जी मुझे शेयरिंग राइट्स दे दीजिए। सर ऑलरेडी गिवन है, आप ओके ओके ओके। So once again, thank you Arun ji, Rajesh ji and Raman ji, Ashok ji for providing me an opportunity to speak on accounting standard Ind AS and recent amendment. So it's a very positive thing. अभी हम जब कोरोना के टाइम में या कोविड टाइम में, so we are gathering on a platform and where we are speaking on accounting standard. So although positive word is सबसे बड़ा negative word है इस 2020 का, so this positive is not a positive word, it's a negative word as of now. तो मैं अरुण जी से डिस्कस कर रहा था कि सर ये जो सेमिनार करना है इसका टॉपिक क्या होना चाहिए। तो जब हम डिस्कस कर रहे थे, सो वी फाउंड दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आज की डेट में इंडिया में 2 तरह के स्टैंडर्ड चल रहे हैं, एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दूसरा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और अगर मैं दोनों का स्टॉक टैली करूं या दोनों का स्टॉक अगर मिला दूं, सो ASR 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड ASR 39 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो 39 + 27 इफेक्टिवली 66 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए। अब ये 66 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि AS और इंड AS हैं, अगर मैं बात करूं AS और इंड AS की, सो इफ यू विल सी द कंपनीज एक्ट, इफ यू विल सी द सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सो सेक्शन 133 में दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हैं और इंड AS भी नोटिफाइड है। Since accounting standards are covered under Companies Accounting Standard Rules 2006, read with Rule 2014, okay, and Ind AS are covered under Companies Ind AS Rules 2015. So section एक ही है, section 133 of Companies Act 2013, लेकिन रूल्स अलग अलग हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज AS रूल्स 2006 में कवर्ड है
और इंड एस कंपनीज इंड एस रूल्स 2015 में कवर्ड है. So this is the structure how these standards are operating. Now coming to the point, अब AS और IND AS अगर दोनों सेक्शन 133 में नोटिफाइड हैं और दोनों ही एप्लीकेबल हैं, तो AS किस पे लगता है और IND AS किस पे लगता है? So on which entities AS is applicable, on which entities IND AS is applicable. So अगर मैं AS की बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं IND AS की. So IND AS सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट एंटिटीज पे एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ कंपनीज पे एप्लीकेबल है. So IND AS is applicable only for companies. Okay. So what about other than companies? Non-companies का क्या होगा? Non-corporate entities का क्या होगा? So say it is a partnership firm, proprietorship firm, Hindu undivided family, LLP, cooperative society. अब इन पे क्या applicable होगा? Banks. So what is applicable on these set of companies? Insurance companies. So on these set of companies, accounting standards are applicable. जो हमारे पुराने accounting standard है, वो applicable होंगे. और अगर IND AS एक कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल IND AS is only applicable to all the listed companies as of now, and as far as unlisted companies are concerned, so IND AS is applicable on unlisted companies where net worth is more than 250 crores. इसका मतलब अगर मैं मोटी मोटी बात करूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IND AS की एप्लीकेबिलिटी की, क्योंकि सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पे एप्लीकेबल है और IND AS किस पे एप्लीकेबल है. मैं आपको 4 दिन पहले की बात बताता हूँ. एक हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त का फोन आया और उनको बैलेंस शीट बनानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे थी, उन्होंने IND AS पे बना दी. कंपनी की बैलेंस शीट थी. ऑल्दो बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी के अलावा चाहे उस कंपनी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, फिर भी आप वॉलंटरी मोड पे जा सकते हैं, आप IND AS की बैलेंस शीट बना सकते हैं. लेकिन अगर उस कंपनी पे IND AS एप्लीकेबल है और अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बैलेंस शीट बना दो, तो ये वही बात हो गई कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी थी और आपने वेल्थ टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी. So this is as good as this thing. मतलब आपने नॉन कंप्लायंस कर दी, मतलब आपने IND AS की बैलेंस शीट बनानी थी पर बनाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बैलेंस शीट, एंड हेंस इट इज अ नॉन कंप्लायंस. क्योंकि अगर IND AS एप्लीकेबल है तो आपको IND AS की ही बैलेंस शीट बनानी है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड किस एंटिटी पे IND AS एप्लीकेबल है, किस एंटिटी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन एंटिटीज पे एप्लीकेबल है. सबसे पहले मैंने बात की सारी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, सारी की सारी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की. ठीक है. दूसरा कॉर्पोरेट एंटिटीज जो कि लिस्टेड नहीं है, और जो अनलिस्टेड कॉर्पोरेट एंटिटीज है, अनलिस्टेड कंपनीज हैं जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, तो उन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होंगे. तीसरा बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज. बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज ने भी आज तक IND AS अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन दोनों ने रोड मैप ये लेकर आए थे IND AS अप्लाई करने का, बट दिस रोड मैप हैज बीन डेफर्ड. दिस रोड मैप हैज बीन डेफर्ड सीन एट आई. तो अभी तक बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज पे IND AS की एप्लीकेबिलिटी का कोई रोड मैप नहीं आया है. सो समराइजिंग, accounting standards are applicable on all non-corporate entities. Accounting standards are applicable on unlisted companies which are having net worth for less than 250 crores. Accounting standards are applicable on banking companies. Accounting standards are applicable on insurance companies. IND AS किस पे applicable है? IND AS is only applicable on corporate entities, I mean to say companies. So this is applicable on listed companies. This is applicable on अनलिस्टेड कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है. ओके. अब हम अगली बात करते हैं जब हम बैलेंस शीट बनाने की बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की बात करते हैं. सो सर कंपनीज के केस में, राजेश जी कंपनी के केस में आप क्या रेफर करते हो? अगर आपने आर्टिकल को बोला कि बेटा ये बैलेंस शीट बनानी है, तो आप क्या फॉर्मेट रेफर करते हो? शेड्यूल 3. सर कंपनी के केस में शेड्यूल 3 फॉलो करते हैं ना. पहले वो शेड्यूल 6 होता था, फिर रिवाइज शेड्यूल 6 आया, अब शेड्यूल 3 आ गया, तो आप शेड्यूल 3 रेफर करते हो. अब मैं पूछना चाहता हूं शेड्यूल 3 की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में कितने शेड्यूल 3 हैं? जैसे मैंने बात की 2 तरह के स्टैंडर्ड हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IND AS. सो मार्केट में कितने शेड्यूल 3 हैं? क्या आप बता सकते हैं? अगर आप गूगल करो, मान लीजिए आपने आर्टिकल को बोला कि बेटा ये बैलेंस शीट बनानी है और शेड्यूल 3 रेफर कर लियो, और अगर वो गूगल पे शेड्यूल 3 टाइप करे तो हो सकता है वो सही शेड्यूल 3 टाइप ना करे, हो सकता है. कैन एनीवन टेल मी कितने शेड्यूल 3 हैं? सो वी शुड ट्राई टू मेक दिस सेशन इंटरैक्टिव. आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं. विद्या खन्ना ने बोला कि 3 शेड्यूल 3 हैं, मतलब शेड्यूल 3 भी 3 है सर. स्टैंडर्ड 2 है, शेड्यूल 3 3 है.
कौन कौन से 3 शेड्यूल 3 हैं? सबसे पहला जो शेड्यूल 3 है वो आया था 24 मार्च 2014 को, 24 मार्च 2014 को सबसे पहला शेड्यूल 3। अगला शेड्यूल 3 आया 6 अप्रैल 2016 को, 6 अप्रैल 2016 को। तीसरा शेड्यूल 3 आया 11 अक्टूबर 2018 को। अब सर ये 3 शेड्यूल 3 किस किस पे एप्लीकेबल होंगे? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैं उस स्लाइड पे लेके चलता हूं आपको। यस, जो पहला शेड्यूल 3 आया था, जो पहले शेड्यूल 3 की अगर मैं बात करूं, तो 26 मार्च 2014, नोट 24 मार्च, 26 मार्च 2014 का शेड्यूल 3, ये एप्लीकेबल है इंडियन गैप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। मतलब अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, एएस के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो कंपनीज के लिए, तो आपको 26 मार्च 2014 का शेड्यूल 3 रेफर करना है। अब अगला शेड्यूल 3 आया 6 अप्रैल 2016 को। तो जब आप 6 अप्रैल 2016 का शेड्यूल 3 देखोगे तो उसमें लिखा है द अर्लियर शेड्यूल 3 विल बी टर्म्ड एज अ डिवीजन 1-2 शेड्यूल 3। जो आज हम लेकर आए हैं 6 अप्रैल 2016 को, दिस विल बी टर्म्ड एज डिवीजन 2-2 शेड्यूल 3, डिवीजन 2-2 शेड्यूल 3। और डिवीजन 2-2 शेड्यूल 3 एप्लीकेबल होगा इंड एएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अगर आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो आप पे कौन सा शेड्यूल 3 एप्लीकेबल होगा कंपनीज के लिए? डिवीजन 2-2 शेड्यूल 3, डिवीजन 2-2 शेड्यूल 3। और ये वाला शेड्यूल 3 कब आया था? 6 अप्रैल 2016 को आया था। और इस वाले शेड्यूल 3 में कहा कि जो पिछला शेड्यूल 3 है, जो 26 मार्च 2014 को आया था, उसमें कोई चेंज नहीं है, और वो शेड्यूल 3 एप्लीकेबल होगा इंडियन गैप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हो उसमें कौन सा एप्लीकेबल होगा? उसमें 26 मार्च 2014 का शेड्यूल 3 एप्लीकेबल होगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर आप एचडीएफसी बैंक की बैलेंस शीट देखोगे, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, या आप इंश्योरेंस कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे, जैसे अगर मैं बात करता हूं तो ओरिएंटल की बैलेंस शीट देख लीजिए, नेशनल इंश्योरेंस की बैलेंस शीट देख लीजिए, तो अगर इन कंपनीज की बैलेंस शीट देखोगे तो इनकी बैलेंस शीट 26 मार्च 2014 के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनी हुई है। ओके, क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर बैलेंस शीट बना रहे हैं, इन पे इंड एएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं बात करूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, इन्फोसिस की बात करूं, टीसीएस की बात करूं, भारती एयरटेल की बात करूं, एलएनटी की बात करूं, अगर आप इनकी बैलेंस शीट देखोगे तो इनकी बैलेंस शीट एज पर डिवीजन 2-2 शेड्यूल 3 है, जो कि 6 अप्रैल 2016 को आया था। ये क्लियर है? So this second schedule 3 is applicable to Indian accounting standard. The first schedule 3 is applicable to accounting standard. अब ये तीसरा schedule 3 क्या है? Anyone who can tell me what is this third schedule 3? क्योंकि हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है। कई बार हम कंप्लायंस ना पता होने की वजह से नॉन कंप्लायंस कर जाते हैं। So at least we should be aware about what is applicable, what is not applicable. जैसे मैंने बताया कि एक सीए फर्म से मुझे फोन आया था और उन्होंने बना दी बैलेंस शीट, इंड एएस की थी, बना दी एएस की, और एएस की बैलेंस शीट बनानी थी पिछले साल, इंड एएस की बना दी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एप्लीकेबल, व्हाट इज नॉट एप्लीकेबल। नाउ एक और शेड्यूल 3 आया 11 अक्टूबर 2018 को। अब सर अगर इस शेड्यूल 3 की बात करें, 11 अक्टूबर 2018 वाले शेड्यूल 3 की, ये भी शेड्यूल 3 एप्लीकेबल है इंड एएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो अब इंड एएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे 2 शेड्यूल 3 हैं, डिवीजन 2, डिवीजन 3, और इंडियन गैप, आई मीन टू से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सिर्फ एक शेड्यूल 3 एप्लीकेबल है, जो कि डिवीजन 1 का नाम दिया गया और जो 26 मार्च को आया था। अब ये 11 अक्टूबर वाला शेड्यूल 3 एप्लीकेबल किस पे है? ये एप्लीकेबल है एनबीएफसी पे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अगर आप बजाज फिनसर्व लिमिटेड की बैलेंस शीट देखोगे, बजाज फिनसर्व लिमिटेड, सो बजाज फिनसर्व लिमिटेड इज अप्लाइंग इंड एएस, क्योंकि उसकी जो नेटवर्थ है वो 250 करोड़ से ज्यादा है। ओके, सो दिस कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी। अगर आप एचडीएफसी लिमिटेड की बैलेंस शीट देखोगे, सो एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फिनसर्व लिमिटेड, मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड, ये जितनी भी एनबीएफसीज हैं, श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड, तो इन सारी एनबीएफसी कंपनीज की जो आपको बैलेंस शीट मिलेगी, अगर आप आज की डेट में एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं, तो सारी की सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एच पर डिवीजन 3 टू शेड्यूल 3 आपको मिलेंगे। उनका फॉर्मेट एच पर डिवीजन 3 टू शेड्यूल 3 होगा, जो 11 अक्टूबर 2018 को आया था। अब जब 11 अक्टूबर 2018 को शेड्यूल 3 आया, डिवीजन 3 टू शेड्यूल 3, तो उसमें डिवीजन 1 में भी कुछ अमेंडमेंट हुई। डिवीजन 1 में अमेंडमेंट क्या हुई? मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले शेड्यूल 3 में क्या अमेंडमेंट हुई? उसमें कहा गया कि जिसको आज तक आप फिक्स्ड एसेट्स बोल रहे हो या टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स बोल रहे हो या टेंजिबल एसेट्स बोल रहे हो, उसका नाम आपको बदलकर
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट करना होगा। मतलब अगर आज की डेट में अगर आपकी बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स में वर्ड अगर फिक्स्ड एसेट्स चल रहा है तो उसको आप बदल देना, नाउ इट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये वाली अमेंडमेंट कब आई थी? डिवीजन 3 टू शेड्यूल 3 में आई थी, जहां पर डिवीजन 1 को भी अमेंड किया गया, 26 मार्च 2014 वाले शेड्यूल 3 को भी अमेंड किया गया। ओके, जहां पर भी आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कहते हो, जहां पर भी आप शेयर प्रीमियम अकाउंट कहते हो, उसका नाम होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये छोटे छोटे चेंजेस आए थे डिवीजन 1 टू शेड्यूल 3 में। तो ये पूरी कहानी है शेड्यूल 3 की, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। एनी डाउट सो फार? एनी डाउट? रमन जी, इज इट ओके? बिल्कुल ठीक है सर, प्लीज गो अहेड। ठीक है जी, यस। सो नाउ मूविंग ऑन टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंड AS। अब मैं बात करता हूं आपसे कि एक भाई साहब का फोन आया, कहते भाई साहब हमारे तो क्लाइंट सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, इंड AS में हमारा कोई क्लाइंट ही नहीं है, तो इंड AS पढ़ने की जरूरत क्या है? तो मैंने उनको ये बोला कि लास्ट अमेंडमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कब आई थी? क्या बता सकते लास्ट अमेंडमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कब आई थी? टोटल पहले ये बताओ स्टैंडर्ड कितने हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं? ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसमें आखिरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया कब था? AS 29 है, वो 2003 में आया था। आखिरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2003 में आया था। 2003 के बाद कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आया। 2003 के बाद 2010-11 में एक अमेंडमेंट आई थी AS 11 में, वो फॉरेन एक्सचेंज वाले स्टैंडर्ड में, जहां पर वो पैरा 46A आया था। पैरा 46A में ऑप्शन दी गई थी कि अगर आपके पास एक्सचेंज लॉस है तो आप उसको कैपिटलाइज भी कर सकते हैं और उसको P&L में भी लेके जा सकते हैं। 46A में आपको ये ऑप्शन दी गई थी। इसके बाद एक मेजर अमेंडमेंट आई थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, बता सकते हैं कौन सी अमेंडमेंट आई थी? वो जानना बहुत जरूरी है सर। 30 मार्च 2016 में अमेंडमेंट आई थी, और 30 मार्च 2016 में 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बदलाव आया था, 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब वो 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं? विद्या खन्ना जी बस रिप्लाई कर रही हैं अकेली चैट बॉक्स पे, बाकी लोग भी कर सकते हैं, रिप्लाई तो फ्री है ना अरुण जी? ओके, हाँ जी। AS2 इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड, AS2 इन्वेंट्री के स्टैंडर्ड में एक अमेंडमेंट आई थी, छोटी सी, बहुत मेजर अमेंडमेंट नहीं थी। AS4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में अमेंडमेंट आई थी, और ये सारी की सारी अमेंडमेंट एप्लीकेबल थी 1 अप्रैल 2016 से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में अगर ध्यान होगा आपको, पहले आप प्रोपोज्ड डिविडेंड दिखाते थे। अगर बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो आप उसकी प्रोपोज्ड डिविडेंड की एंट्री लेते थे 31 मार्च को, वो खत्म हो गया अब। सो AS4 में ये चेंज आया था। अच्छा, ये AS4 में चेंज आया क्यों? पहले क्या होता था, AS4 में हम इसको एडजस्टिंग इवेंट मानते थे, और जब बोर्ड मीटिंग में जिसमें आपके अकाउंट्स अप्रूव हो रहे हैं, अकाउंट्स अडॉप्ट हो रहे हैं, अगर उसमें डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो हम इसको एडजस्टिंग इवेंट मानते थे और हम इसकी लायबिलिटी बुक कर लेते थे प्रोपोज्ड डिविडेंड की। लेकिन इंड AS में और IFRS में, IFRS का मतलब हो गया ग्लोबल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि IFRS का छोटा भाई है, जो इंडिया में एप्लीकेबल है। So Ind AS is the Indianized version of IFRS applicable to India. So Ind AS में हम इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानते हैं, IFRS में इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानते हैं। मतलब हम क्या करते थे, जब बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो मैं उसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानता था और 31 मार्च में कोई एंट्री नहीं लेता था। सो AS4 में ये मेजर चेंज आया, और AS4 में इसको हमने बोला कि अमेंडमेंट करके कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा, और आज के बाद अगर बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड अप्रूव किया है तो जिस साल में अप्रूव हुआ है, जिस साल में डिक्लेयर हुआ है, हम उसी साल में उसकी लायबिलिटी पकड़ेंगे। 31 मार्च में उसकी लायबिलिटी नहीं पकड़ेंगे। ये चेंज क्यों आया? ये चेंज आया जस्ट टू अलाइन विथ इंड AS और IFRS। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब हिंदुस्तान में पहली बार इंड AS का कन्वर्जन हुआ 2016-17 में, सो 90% लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट में, 90% लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट आई थी। सो दिस वाज अ चेंज इन AS4। AS4 का नाम है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इसके बाद एक स्टैंडर्ड था AS6। आज की डेट में भी जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में
जब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सर्टिफाई करते हैं एनुअल रिपोर्ट या बैलेंस शीट, अगर आप उसका नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ोगे तो अकाउंटिंग पॉलिसी में आज भी आपको मिल जाएगा कि डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर AS 6 है, और AS 6 को अलविदा कहे हुए आज 4 साल हो गए। सो ऑन 30th March 2016 AS 6 वाज डिलीटेड, AS 6 डिलीट कर दिया गया। और AS 10 अगर आप स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो पूरा का पूरा बदल दिया गया है AS 10। So earlier the name of AS 10 was accounting for fixed assets. अब उसका नाम क्या है AS 10 का? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब ये चेंज क्यों आया? सो राजेश जी, ये जो चेंज आया इसमें क्या किया, AS 10 को एज इट इज कॉपी पेस्ट करके जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 था, इंड AS 16 बात करता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, फिक्स एसेट्स अकाउंटिंग की, वो सारा का सारा एज इट इज उठाकर AS 10 में चिपका दिया। So now AS 10 is 95% similar to IND AS. पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में और IND AS 16 में कम से कम 15 डिफरेंस होते थे, अब आज की डेट में सिर्फ एक डिफरेंस है, AS 10 में और IND AS 16 में। So now this AS 10 is substantially aligned with IND AS 16। और नाम इसका क्या हुआ, अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट से बदलकर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कर दिया गया। स्टैंडर्ड में बहुत मेजर चेंज है, बहुत मेजर अमेंडमेंट है स्टैंडर्ड में, और डेप्रिसिएशन का जो भी पोर्शन था वो AS 6 को डिलीट किया और डेप्रिसिएशन का पूरा पोर्शन AS 10 के अंदर ही आ गया, जैसा कि IND AS 16 में है। IND AS 16 में there is a one standard which talks about fixed assets, which talks about depreciation, which talks about impairment on this fixed assets. Okay? अब मैंने बात की AS 2 की, AS 4 की, AS 10 की, एक चेंज और आया। कौन से स्टैंडर्ड में आया? AS 13 में आया। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट का स्टैंडर्ड है, उसमें बात की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आपने इन्फोसिस के शेयर लिए हैं तो वो इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने म्यूचुअल फंड खरीदी है तो वो इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने डिबेंचर खरीदे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आपने लैंड और बिल्डिंग खरीदी है और आपका ऑब्जेक्टिव बिजनेस करना नहीं है उस लैंड और बिल्डिंग में, आपका ऑब्जेक्टिव उस लैंड और बिल्डिंग को किराए पे चढ़ाने का है, या आपका ऑब्जेक्टिव उस लैंड और बिल्डिंग के लिए रेंट अर्न करने का है या कैपिटल एप्रिसिएशन का है। जैसे आप में से बहुत लोगों ने यमुना एक्सप्रेसवे के पास प्लॉट डाल रखे होंगे लेके कि जब पैसे बढ़ेंगे तब हम बेच देंगे। राजेश जी, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोगों ने डाल रखे हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस प्लॉट को खरीदने का या फ्लैट खरीदने का ऑब्जेक्टिव है कैपिटल एप्रिसिएशन। सो अगर किसी लैंड और बिल्डिंग का ऑब्जेक्टिव रेंटल इनकम अर्न करने का है या कैपिटल एप्रिसिएशन का है, सो दैट विल बी क्लासिफाइड एज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग हम कॉस्ट मॉडल पे करेंगे। ये कहाँ लिखा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में लिखा, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में ये चेंज आया कि दिस हैज टू बी अकाउंटेड फॉर एज अ कॉस्ट मॉडल। और कॉस्ट मॉडल का मतलब क्या होगा? कॉस्ट मॉडल का मतलब वही होगा जो AS 10 में लिखा है, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड में लिखा है। तो अगर आज की डेट में आपके क्लाइंट के पास अगर कोई लैंड और बिल्डिंग है, तो आप सबसे पहला सवाल ये पूछना कि भाई साहब, इस लैंड और बिल्डिंग में आपका कॉर्पोरेट ऑफिस है, आपका हेड ऑफिस है, आपकी फैक्ट्री है, आप इसको बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, तब तो वो फिक्स एसेट की तरह ट्रीट होगा, AS 10 में PPE की तरह ट्रीट होगा। अगर आपका क्लाइंट उस पे रेंटल अर्न कर रहा है या आपके क्लाइंट ने उसको कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा हुआ है, देन इट विल बी क्लासिफाइड एज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड अकाउंटेड फॉर अंडर AS 13। वो AS 10 में नहीं होगा, AS 13 के हिसाब से। सो दिस इज द चेंज। उसके बाद AS 14 में अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन वाले स्टैंडर्ड में एक वो अमालगमेशन एडजस्टमेंट डेफिसिट अकाउंट का कॉन्सेप्ट आया। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में अगर आपने पेमेंट कम की है और असेट्स ज्यादा के हैं तो आप उसको अमालगमेशन एडजस्टमेंट डेफिसिट अकाउंट दिखा सकते हैं। सो AS 14 में चेंज आया। AS 14 के बाद AS 21 में एक चेंज आया। AS 21 में क्या चेंज था? ये AS 21 के चेंज ने बहुत सारी CA फर्म को इम्पैक्ट किया जो कंसोलिडेशन करते थे। क्या चेंज है AS 21 में? AS 21 में अगर आज की डेट में, पहले क्या होता था? पहले कंसोलिडेशन सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के केस में होता था। क्यों लिस्टेड कंपनीज के केस में कंसोलिडेशन इसलिए करते थे? क्योंकि सेबी LODR की रिक्वायरमेंट थी, सेबी रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट थी। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 ये नहीं कहता था कि कंसोलिडेशन कब करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 ये कहता था कि कंसोलिडेशन कैसे करना है। सो AS 21 does not talks about when to do the consolidation. AS 21 talks about how to do the consolidation.
First, you need to decide whether you want to do the consolidation or not. So this was the situation prior to Companies Act 2013. Companies Act 1956 में there was no any regulation which talks about unlisted companies need to do the consolidation. Unlisted companies को consolidation करने की कोई requirement नहीं थी, सिर्फ listed companies को requirement थी. वो भी requirement कहाँ से आ रही थी? SEBI LODR से आ रही थी, SEBI regulation से. अब जब Companies Act 2014 आया, effective from 1st April 2014, Companies Act 2013 sorry, उसमें कहा गया कंसोलिडेशन मैंडेटरी है. जितनी भी अनलिस्टेड कंपनीज हैं उनको भी कंसोलिडेशन करना है अगर उनके सब्सिडरी है, जॉइंट वेंचर है और एसोसिएट है. मतलब अगर मान लीजिए आपकी एक कंपनी है एक्स लिमिटेड जिसका आप ऑडिट करते हैं, एंड एक्स लिमिटेड इज हैविंग अ सब्सिडरी वाई प्राइवेट लिमिटेड, एक्स प्राइवेट लिमिटेड इज हैविंग अ सब्सिडरी व्हिच इज अ वाई प्राइवेट लिमिटेड. ओके, तो सब्सिडरी है तो कंसोलिडेशन करना ही करना है. सेकंड एग्जांपल, एक्स लिमिटेड इज हैविंग अ एसोसिएट which is again Y private limited. अगर X limited का एक एसोसिएट भी है तो भी उसको कंसोलिडेशन करना है. थर्ड, X limited is having a joint venture Y private limited. X की ना कोई सब्सिडरी है ना कोई एसोसिएट है, X का सिर्फ और सिर्फ एक जॉइंट वेंचर है तो भी उसको कंसोलिडेशन करना है. सो ये वाला फैक्ट कहाँ कैप्चर हुआ? ये फैक्ट कैप्चर हुआ आपके AS 21 में कि इफ अ कंपनी डज नॉट हैव अ सब्सिडरी बट इज हैविंग ओनली अ एसोसिएट और अ जॉइंट वेंचर, then the consolidation is also required. तब भी आपको consolidation mandatory हो जाता है. Standard applicable अलग होंगे, but of course ये अमेंडमेंट कहाँ आई? AS 21 में अमेंडमेंट आई. AS 21 के बाद एक स्टैंडर्ड में चेंज और आया. मैंने अभी तक कौन कौन से स्टैंडर्ड की बात की? AS 2 की बात की, क्योंकि आज का जो एजेंडा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड AS और अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कहाँ कहाँ अमेंडमेंट आज तक आई है जिसको आपको टेक केयर करना है. सबसे पहले मैंने बात की डिवीजन 1 टू शेड्यूल 3 की, कि आपके लिए डिवीजन 1 टू शेड्यूल 3 एप्लीकेबल होगा. और मैंने बात की कि जब आप अपने जब अकाउंट्स ऑडिट करोगे, अकाउंट्स फाइनल करोगे, यू नीड टू सी डिवीजन 3 टू शेड्यूल 3 ऑल्सो. 11 अक्टूबर 2018 का नोटिफिकेशन भी आपको देखना है. उस नोटिफिकेशन में डिवीजन 1 टू शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट आई थी. ठीक है, बहुत छोटी सी अमेंडमेंट थी. दूसरा मैंने बताया AS 11 जो 2010-11 के आसपास आया था, उसमें अमेंडमेंट पैरा 46A की अमेंडमेंट आई थी. फिर मैंने बात की 30 मार्च 2016 की, जहां मैंने बात की AS 2 के अमेंडमेंट के बारे में, AS 4 के बारे में, AS 6 के बारे में जो डिलीट हो गया, AS 10 के बारे में बात की, AS 13 के बारे में बात की, AS 14 के बारे में बात की और AS 21 के बारे में बात की, जो कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड है. कंसोलिडेशन के भी 3 स्टैंडर्ड हैं. AS 21 सब्सिडरी कंसोलिडेशन की बात करता है, AS 23 एसोसिएट कंसोलिडेशन की बात करता है और AS 27 जॉइंट वेंचर कंसोलिडेशन की बात करता है. अगला स्टैंडर्ड है AS 29. अब इस AS 29 का चेंज बहुत ही बड़ा चेंज था. अगर मैं बात करूं उन कंपनीज की जिनकी बुक्स में साइट रिस्टोरेशन ऑब्लिगेशन है, असेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन है, डिसमेंटलिंग ऑब्लिगेशन है. फॉर एग्जांपल, आपने एक कंपनी बनाई ABC एडवाइजर्स लिमिटेड, ABC कंसल्टेंट्स लिमिटेड. ठीक है जी, आप पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है क्योंकि आपकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है. आपने लीज पे एक जगह ली, लीज पे आपने एक बिजनेस प्रीमाइसेस लिया, लीज पे एक आपने बिल्डिंग ली और आपने उस बिल्डिंग पे लीज होल्ड इंप्रूवमेंट किया, आपने उस बिल्डिंग की पूरी रेनोवेशन कराई. एग्रीमेंट ये है लैंडलॉर्ड के साथ, लैंडलॉर्ड ने कहा जब आप 10 साल के बाद इस बिल्डिंग को छोड़कर जाओगे तो मुझे ये बिल्डिंग, जैसे मैंने आपको 4 दीवार दी थी, सो आई नीड दिस 4 वॉल्स एज इट इज, आई नीड दिस प्रीमाइसेस वेकेंट एज इट इज, I need this premises in the same condition in which I have given to you. तो 10 साल के बाद क्या होगा? 10 साल के बाद ये जितनी भी आपने रेनोवेशन करी है, फॉल सीलिंग कराई है, पार्टीशन कराया है, तो इसकी डिसमेंटल करने की भी ऑब्लिगेशन आएगी, डिसमेंटलिंग ऑब्लिगेशन भी आएगी. तो स्टैंडर्ड ये कहता है, अमेंडमेंट ये आई पहले AS 29 में, लॉन्ग टर्म प्रोविजन शुड नॉट बी डिस्काउंटेड. पहले डिस्काउंटिंग का प्रेजेंट वैल्यू पे लेने का कोई प्रोविजन था नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में. बट AS 29 में एक चेंज आया और ये चेंज आया कि अगर आपकी कोई डिसमेंटलिंग ऑब्लिगेशन है, अगर आपकी कोई एसेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन है, अगर आपकी कोई साइट रिस्टोरेशन ऑब्लिगेशन है जो कि 1 साल के बाद इनकर होगी, आपको उसकी जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी, जो भी आपको उसका बेस्ट एस्टिमेट निकालना है, आप उसको क्या करोगे? उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे इसको रिकॉर्ड करोगे और एंट्री क्या डालोगे? असेट में उसको कैपिटलाइज करोगे. जो आपकी लीज होल्ड इंप्रूवमेंट है आप उसमें कैपिटलाइज करोगे, क्रेडिट करोगे असेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन लायबिलिटी को, ARO लायबिलिटी को, प्रोविजन फॉर ARO.
और क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू पे है, आप इस पे इंटरेस्ट कॉस्ट फैक्टर करते जाओगे। जैसे मान लो आपने 10% पे डिस्काउंटिंग की है, तो 10% से इसकी कंपाउंडिंग भी करोगे। सो हर साल आपकी 10% की इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी। फॉर एग्जाम्पल 10 साल के बाद 1 लाख की कॉस्ट आनी है, प्रेजेंट वैल्यू 25,000 रुपए है, तो 25,000 को जब आप 10% पे अनवाइंडिंग करोगे तो ये 25,000 1 लाख बन जाएगा 10 साल में। और फिर जो भी आपकी लाइबिलिटी होगी, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की जगह आपकी लाइबिलिटी 1,15,000 की आई, तो 15,000 उस टाइम के P&L में चला जाएगा। सो दिस इज द बिग चेंज which have been happened in AS 29, Accounting Standard 29. यहां तक कोई दिक्कत? ओके, सो AS 29 में भी ये बहुत बड़ा मेजर चेंज आया। तो अभी तक मैंने AS 2 की बात की, 4 की बात की, 6 की, 10 की, 13, 14, 21, 29. So these were the major change in accounting standard scenario. Okay. अब कुछ लोगों की ये कंफ्यूजन होती है कि सर ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पे एप्लीकेबल है। तो अगर ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पे एप्लीकेबल हैं, तो क्या सारे के सारे स्टैंडर्ड नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पे एप्लीकेबल होंगे? मतलब अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हो, पार्टनरशिप फर्म की, तो आप क्या करोगे? अगर पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हो तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर अप्लाई करेंगे तो क्या मैं AS 15 जो एक्चुरियल वैल्यूएशन का स्टैंडर्ड है, क्या मुझे वो अप्लाई करना चाहिए? क्या रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड मुझे अप्लाई करना चाहिए? क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टैंडर्ड मुझे अप्लाई करना चाहिए? क्या मुझे ये सारे स्टैंडर्ड अप्लाई करने चाहिए? क्या करेंगे? सर 3 सिनारियो दिए गए हैं। सबसे पहले बोला गया कि एक तो कॉर्पोरेट एंटिटी होती है, एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी होती है। कॉर्पोरेट एंटिटी के केस में अगर वो स्मॉल एंड मिड साइज कंपनी है, कॉर्पोरेट एंटिटी के केस में इफ इट इज अ स्मॉल एंड मिड साइज कंपनी, तो उसमें कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। ओके, और अगर नॉन एसएमसी है, अगर वो स्मॉल एंड मिड साइज कंपनी नहीं है, तो फिर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है और सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करने। लेकिन अगर वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है, मतलब नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो अगर वो लेवल 1 एंटिटी है, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म उसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है या उसकी बोरोइंग 10 करोड़ से ज्यादा है, मफतलाल एंड सन्स कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसका आप ऑडिट करते हो, अगर मफतलाल एंड सन्स की टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है या मफतलाल एंड सन्स की बोरोइंग 10 करोड़ से ज्यादा है, तो लेवल 1 एंटिटी मानी जाएगी और उस केस में आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करने हैं सिवाय AS 25 के जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड है। उसके अलावा आपको सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करने हैं। लेवल 2 एंटिटीज क्या होती है? लेवल 2 एंटिटीज में थोड़ी और रिलैक्सेशन दी गई। लेवल 2 एंटिटी वो एंटिटी होती है जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 50 करोड़ से कम है, और जिसकी बोरोइंग 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है। अगर ऐसी कोई एंटिटी है तो उसमें और रिलैक्सेशन दी गई कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं करना, आपको एक्चुरियल गेन का स्टैंडर्ड अप्लाई टोटलिटी में नहीं करना, आपको रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं करना, आपको इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं करना। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो एंटिटी है लेवल 1 एंटिटी है या लेवल 2 एंटिटी है। टेक्निकली आपको ये देखना पड़ेगा कि वेदर द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इज मोर देन 50 करोड़ और लेस देन 50 करोड़, whether the borrowing of the company, not company, borrowing of the entity is more than 10 crore or less than 10 crore. अगर 10 करोड़ से ज्यादा की बोरोइंग है उस पार्टनरशिप फर्म की या प्रोप्राइटरशिप फर्म की या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, और या फिर उसकी जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ज्यादा है, तो वो कहाँ कवर हो जाएगी? वो कवर हो जाएगी लेवल 1 में। और अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है और 50 करोड़ से कम है, तो लेवल 2 में कवर हो जाएगी। तो वहां पर कुछ और रिलैक्सेशन है। अगर ना तो वो एंटिटी लेवल 1 है ना ही एंटिटी लेवल 2 है, तो वो कहाँ कवर होगी? लेवल 3 एंटिटीज में। सो लेवल 3 एंटिटीज में जो एग्जेम्पशंस दी गई हैं, रिलैक्सेशंस दी गई हैं, वो लेवल 2 से और भी ज्यादा एग्जेम्पशंस और रिलैक्सेशन दी गई है। सो यू नीड टू सी व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर लेवल 1 एंड लेवल 2, और जो आपकी एंटिटी है उस क्राइटेरिया में फॉल कर रही है या नहीं कर रही है। अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, बोरोइंग 1 करोड़ से कम है, सो इट विल बी कवर्ड अंडर लेवल 3 एंटिटीज। ICAI का एक बहुत अच्छा मटेरियल है। जनरली जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड AS की बात करते हैं तो सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ही बात कहते हैं सर सबसे पतली किताब बताओ जिसमें पन्ने कम हो और सारे स्टैंडर्ड भी कवर हो जाएं।
तो आईसीआई की एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बुक आई है, अभी नहीं, बहुत टाइम हो गया बुक आए हुए, 6 महीने साल भर हो गया, शायद 90 या 95 पेजेस की किताब है, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समराइज किए हुए हैं। सो आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि आप उसको आईसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए और उसको अपने पास जरूर रखें। बहुत पतली सी किताब है और सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं उसमें, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के बारे में बताया गया है, कौन कौन सा पैरा लेवल 2 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेवल 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सारी की सारी डिटेल उस पर्टिकुलर बुक में दी हुई है। सो वो किताब अपने पास जरूर रखें अगर आप मोटी किताब नहीं पढ़ सकते। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नहीं तो वो वाला जो पीडीएफ फाइल है वो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा अरुण जी को या रमन जी को, राजेश जी को फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। इज इट ओके सर? यस। सो अब हम चलते हैं वन बाय वन सारे स्टैंडर्ड्स पे। AS1 की मैं बात करूं, सो AS1 इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सो AS1 ओनली टॉक्स अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जहां पर हम बात करते हैं कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज की, नॉट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज की। सो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं सर, एक क्लाइंट का फोन आया और क्लाइंट ने बोला, क्लाइंट भी चार्टर्ड अकाउंटेंट था और आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हुई, क्लाइंट ने बोला भाई साहब ऐसा करो कि मेरी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन बहुत कम आ रही है इस बार और मुझे बैंक से लोन लेने के लिए प्रॉफिट चाहिए, तो अरुण जी कुछ ऐसा करिए ताकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के दायरे में रहते हुए हम कुछ काम कर लें। तो क्लाइंट ने आपको आइडिया दिया कि एक काम करो, लीफो मेथड अप्लाई कर दो। आज तक आप हमारी इन्वेंट्री पे फीफो मेथड अप्लाई करते थे, वेटेड एवरेज अप्लाई करते थे, आप इस पे लीफो मेथड अप्लाई कर दो। अरुण जी ने कहा कि देखो लीफो मेथड तो अप्लाई होता नहीं है, लीफो मेथड इज नॉट अलाउड इन AS2। तो उसने आइडिया दिया कि भाई साहब एक काम करो, आप इसका डिस्क्लोजर कर दो, इसका डिस्क्लोजर कर दो, द कंपनी हैज अप्लाइड लीफो मेथड फॉर इट्स इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और लीफो मेथड के हिसाब से इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन है वो हमने चेक कर ली, वो ठीक है। अब आपको ऑडिट रिपोर्ट देनी है, जब आप ऑडिट रिपोर्ट देते हो आप कहते हो मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की। और ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इज टू प्रोवाइड एन ओपिनियन ऑन दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। So management has to prepare the financial statement on true and fair view, on a true and fair basis, and auditor has to provide an opinion on the financial statement that whether these financial statement are presenting true and fair view or not. तो उन्होंने क्या किया, क्लाइंट ने आइडिया दिया और भाई साहब ने बोला ठीक है, मैं अकाउंटिंग पॉलिसी ये जो आप बोल रहे हो मैं इसका डिस्क्लोजर दे देता हूं। सो माय क्वेश्चन इज, आप कह रहे हो कि the management or the company has prepared the accounting standard as per true and fair view, and it is a rebuttable presumption कि अगर सारे accounting standard आप apply कर रहे हो then these accounts are presenting true and fair view. This is a rebuttable presumption. और आप कह भी रहे हो कि management has applied all the accounting standard which is covered under Companies Accounting Standard Rule 2006 and notified under section 133 of Companies Act 2013. आप ये बात कह भी रहे हो। Now my question is whether disclosure of wrong accounting policy is a remedy for applying a wrong accounting policy. क्या डिस्क्लोजर रेमेडी है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं सर? नहीं जी नहीं। आपने प्रॉपर डिस्क्लोजर कर दिया इस बात का। यस, इट इज नॉट अलाउड। सो AS1 कहता है कि भाई साहब आपको जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करनी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के दायरे में रहते हुए करनी है। Disclosure of wrong accounting policy or such disclosure is not a remedy of applying a wrong accounting policy. So you cannot do that. AS2 valuation of inventory की बात करता है। So valuation of inventory में एक चीज बड़ी कॉमन है, इस बार जब आप ऑडिट कर रहे होंगे तो आपके पास जितनी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होंगी या आपकी जो पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप फर्म होंगी उनका ये जरूर देख लेना, अगर वो मैंडेटरी कमोडिटीज में कवर नहीं होती, अगर वो नेसेसरी कमोडिटीज में कवर नहीं होती है, तो जितने पीरियड का लॉकडाउन था 23 मार्च से लेकर जब भी 17 मई या जो भी मैंडेटरी लॉकडाउन का पीरियड था, तो उस टाइम पे उनका डिलीवरी चालान या इनवॉइस नहीं कटा होना चाहिए। पता चला उसी डेट का उन्होंने इनवॉइस काट रखा है। सो यू नीड टू सी whether your client is covered under the necessary goods or not. अगर necessary goods में कवर होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट डेयरी प्रोडक्ट में डील करता है, तो डेयरी प्रोडक्ट वाज कवर्ड अंडर नेसेसरी गुड्स, तो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका क्लाइंट
फार्मास्यूटिकल में डील करता है, सो फार्मास्यूटिकल वाज कवर्ड अंडर नेसेसरी गुड्स, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। सो आपको इन्वेंट्री देखनी पड़ेगी कि आपको इन्वेंट्री का ऑब्सोलेसेंस लेना है या नहीं लेना है। जब 31 मार्च की इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगी, आपको ये भी देखना पड़ेगा, बिकॉज एज पर AS2 इन्वेंट्री हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ओके, सो AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपने जितनी भी लिस्टेड कंपनीज देखी हैं, ऑल्दो जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हो तो वो बोलता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं। आप क्या करते हो, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करते हो, फिर आप एडजस्टमेंट करते हो वर्किंग कैपिटल चेंजेस की, फिर आप एडजस्टमेंट करते हो टैक्स की एडजस्टमेंट करते हो, आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हो, आप उसमें ऐड करते हो जो भी नॉन कैश आइटम है, जैसे डेप्रिसिएशन है, अनरियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज है, तो आप इन सबके एडजस्टमेंट करते हो, फिर आप निकालते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद आप क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करते हैं कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट खरीदी, कितनी बेची, कितने फिक्स एसेट खरीदे, कितने बेचे, उन सब का हिसाब लगाते हो। देन आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के हिसाब से कैश फ्लो बनाते हो कि इंक्रीज इन शेयर कैपिटल है या नहीं है, बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल है या नहीं है, लोन टेकन, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये सारी चीजें क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। उसके बाद इन तीनों का टोटल लगाते हो, वो आता है चेंजेस इन कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। आप इसको ओपनिंग में ऐड करते हो, क्लोजिंग बैलेंस शीट से टैली होना चाहिए। यही करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 2 मेथड दिए हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। कभी आपने लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट में डायरेक्ट मेथड देखा है? और अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करो तो आपको रिकमेंड करता है कि आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना चाहिए। क्या आपने लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट में कभी कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड पे देखा है? ऑल्दो इट इज अलाउड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो अंशु एंड विद्या जी कह रही है नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं होता? क्योंकि सेबी एलओडीआर की रिक्वायरमेंट है, सेबी रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है, और सेबी रेगुलेशन ये कहते हैं कि लिस्टेड कंपनी को जो कैश फ्लो बनाना है वो एज पर इनडायरेक्ट मेथड बनाना है, एज पर इनडायरेक्ट मेथड बनाना है। तो ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मामला है ये आपको एज पर इनडायरेक्ट मेथड करना है। ओके, अब अगर मैं AS5 की बात, सॉरी AS3 की बात करूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट की, अगर आपके पास कोई क्लाइंट है इंड AS का जिसकी आप इंड AS के हिसाब से बैलेंस शीट बना रहे हो, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का काउंटर पार्ट है इंड AS1। मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी बताता हुआ चलता हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का काउंटर पार्ट है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जो कि बात करता है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। AS1 सिर्फ बात करता है अकाउंटिंग पॉलिसीज की, इंड AS1 बात करता है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अगर आप पढ़ोगे उस इंड AS1 को तो बहुत ही डिटेल्ड स्टैंडर्ड है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, साल 1.5 साल के अंदर अंदर ये जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं ये सारे 90% इंड AS के साथ सेम हो जाएंगे। आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बदलने वाले हैं। एक्सपोजर ड्राफ्ट काफी स्टैंडर्ड का इशू हो चुका है, 10 से 12 स्टैंडर्ड नकास अप्रूव कर चुका है, नफरा अप्रूव कर चुकी है 10 से 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। द ओनली थिंग इज MCA ने अभी नोटिफाई नहीं किया है। तो ये जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पढ़ रहे हो जो लेफ्ट साइड में है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बदलने वाले हैं। वो दिन दूर नहीं, मैक्सिमम 1 साल 1.5 साल या मैक्सिमम 2 साल ये AS भी आपके बदल के इंड AS में ही आ जाएंगे। हाँ जी, सो इंड AS1 की अगर मैं बात करूं तो इंड AS1 सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसी की बात नहीं करता, वो तो बैलेंस शीट की भी बात करता है, प्रॉफिट एंड लॉस की बात भी करता है, वो अदर इक्विटी की भी बात करता है, और वो नोट्स टू अकाउंट्स की भी बात करता है। इंड AS1 बहुत ही डिटेल स्टैंडर्ड है जहां पर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी दिया हुआ है। फॉर्मेट आई मीन टू से, इंड AS1 कहता है एक ऐसा इकलौता स्टैंडर्ड है जो स्टैंडर्ड के अंदर आपको बताता है बैलेंस शीट की लाइन आइटम क्या होनी चाहिए मिनिमम, प्रॉफिट एंड लॉस की मिनिमम लाइन आइटम क्या होनी चाहिए, नोट्स का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, सारी की सारी बातें इंड AS1 बताता है। और इंड AS1 में एक बहुत ही खतरनाक पैरा है, वो क्या है? कहता है मैनेजमेंट को एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस देनी है नोट्स टू अकाउंट्स में, जो कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं है। वो कहता है मैनेजमेंट हैज टू प्रोवाइड एन एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद ऑल द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मैनेजमेंट को स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस देनी है नोट्स टू अकाउंट्स में कि हमने फाइनेंशियल बनाते हुए सारे के सारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई किए हैं। So this is the compliance which has to be included in the notes to accounts. AS2 और इंड AS2 की बात करूं, इन्वेंटरीज के स्टैंडर्ड की बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर AS3 और इंड AS7 की बात करूं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की, तो एक बहुत बड़ा चेंज है। आज की डेट में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में बैंक ओवरड्राफ्ट का ट्रीटमेंट क्या करते हैं? व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट?
अगर आपने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है तो आप उसको क्या मानते हो? आप उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कवर करते हैं. If you have taken a bank overdraft, then it will be covered under financing activity. It is a loan, it is a borrowing. अपनी बैलेंस शीट में आप दिखाते हो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो भी बैंक ओवरड्राफ्ट है, अगर आपका 100 रुपए का बैंक ओवरड्राफ्ट है तो 100 रुपए आप दिखाते हो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कि पैसा आया. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है, इंड AS 7, कि अगर आपने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है तो वो आपका कैश इन कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए. मतलब आपकी बैलेंस शीट, अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे तो बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में आ रहा होगा. बैलेंस शीट में कैश इन कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आ रहा होगा? कैश आ रहा होगा, कैश एट बैंक आ रहा होगा, और शॉर्ट टर्म मनी आ रही होगी जो 3 महीने के अंदर अंदर FD जो कि आपकी कैश में कन्वर्ट होने वाली है. इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी में आ रहा होगा. यही होता है ना सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी यही होता है और इंड AS में भी यही होता है. लेकिन इंड AS में एक पैरा है इंड AS 7 में कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, वो ये कहता है कि अगर आपने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट माना जाएगा. मतलब आपके क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपका जो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसके अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट भी ऐड हो जाएगा. तो सबसे बड़ा चेंज क्या है? इंड AS की बैलेंस शीट में हो सकता है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश फ्लो में नेगेटिव भी हो सकता है. तो आप अपने आर्टिकल की पिटाई मत कर देना कि यार ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नेगेटिव कैसे ले आया तू. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंड AS 7 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, इंड AS कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, द बैंक ड्यू टू द बैंक ओवरड्राफ्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कुड बी नेगेटिव. लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम बैंक ओवरड्राफ्ट को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में अलग से दिखाते हैं. सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैन नॉट बी नेगेटिव. क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? ओके. सो AS 5 की बात करें हम, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज. सो ये वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है ये बात करता है प्रायर पीरियड आइटम की, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज की, और नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड की बात करता है ये. वैसे इंड AS 8 बात करता है अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट और एरर्स की. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के अंदर दो कॉन्सेप्ट है, एक्सेप्शनल आइटम का और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का, और बल्कि प्रायर पीरियड एरर का भी कॉन्सेप्ट है. 3 कॉन्सेप्ट हैं, एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड प्रायर पीरियड एरर्स. बट इंड AS 8 की बात करूं तो कोई प्रायर पीरियड एरर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. और वैसे ही ये जो दो कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शनल आइटम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इंड AS में. मतलब अगर आज की डेट में आपके P&L में कोई एक्सेप्शनल आइटम है तो आप आपके P&L में एक्सेप्शनल आइटम को दिखाते हो. अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है आप उसको भी दिखाते हो अपने P&L में. और अगर पिछले साल की कोई गलती है आपको इस साल पता लगी है तो आप उसको एज अ प्रायर पीरियड एरर दिखाते हो. ये 3 नए लाइन आइटम आते हैं आपके P&L में. लेकिन अगर आप सेम इंड AS का P&L बना रहे हो तो इंड AS के P&L में दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम विल नॉट कम, दिस प्रायर पीरियड एरर विल नॉट कम. तो ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले हम चलते हैं एक्सेप्शनल आइटम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पे. अकॉर्डिंग टू AS 5, what is the treatment of exceptional item and what is the treatment of extraordinary item? क्या ट्रीटमेंट होगा? ये दोनों हैं क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब होता है आइटम विच इज नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में चोरी हो गई, सो ड्यू टू द थेफ्ट देयर इज अ लॉस ऑफ अ स्टॉक ऑफ रुपीज लेट्स से 20 करोड़. तो ये 20 करोड़ की जो चोरी हुई है, जो नुकसान हो गया 20 करोड़ का, तो ये कहां जाएगा? दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन नेचर. लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू कोविड, whether COVID is the ordinary thing. आपके क्लाइंट का नुकसान हो गया कोविड की वजह से, गोडाउन में माल रखा था और गोडाउन में 20 करोड़ का माल खराब हो गया. So is it a ordinary in nature? This is extraordinary in nature. तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और फिर आपको उसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, सो दैट जो भी यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर बैंक उस बैलेंस शीट को पढ़ रहा है तो बैंक को समझ में आ जाएगा भाई साहब ये जो इस बार इतना लॉस आया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की वजह से आया है. ये कोविड पिछले साल नहीं था और इस साल है, इसीलिए इस साल 20 करोड़ का लॉस ज्यादा आया है. अदरवाइज द क्लाइंट इज इंप्रूविंग. तो पहले बात की मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की. अब एक्सेप्शनल आइटम क्या होती है? एक्सेप्शनल आइटम आर दोज आइटम विच आर ऑर्डिनरी इन नेचर. जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट. अगर मैं प्रोविजन फॉर बैड डेट की बात करूं तो अगर आप अपना माल बेचते हो उधार पे
So if you are selling your goods on credit basis, then bad debt is normal in nature. तो bad debt तो होगा ना, अगर आप माल बेचोगे तो नुकसान भी होगा. So there could be a bad debt which is ordinary in nature. But if the client become or the customer become insolvent, अगर customer bankrupt हो गया और उसकी वजह से आपको बहुत major नुकसान हुआ है, so it is known as a exceptional item. It is known as a exceptional item. So exceptional item are those items which are ordinary in nature, लेकिन it is less frequent or it going by the substance, the value is very high. So अगर मैं बात करूं भारतीय इंफ्राटेल लिमिटेड की, अगर आप भारतीय इंफ्राटेल लिमिटेड के अकाउंट्स देखोगे 2017-18 के, if you will see the financial statement of Bharti Infratel Limited, so they have shown a bad debt as an exceptional item. क्योंकि एयरसेल, आपको याद होगा एयरसेल 2017-18 में एयरसेल बिकम बैंकरप्ट, एयरसेल बिकम इंसॉल्वेंट. तो एयरसेल की वजह से उनका जितना भी नुकसान हुआ, बिकॉज दिस इंसॉल्वेंसी इज नॉट कॉमन, दिस इंसॉल्वेंसी इज समथिंग एक्सेप्शनल, तो उससे जितना भी नुकसान हुआ उन्होंने कहां दिखाया, एक्सेप्शनल आइटम में दिखाया. अगर आप भारतीय एयरटेल की बैलेंस शीट देखेंगे या वोडाफोन इंडिया लिमिटेड की बैलेंस शीट देखेंगे, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की, सो लास्ट ईयर एक अनाउंसमेंट आई थी एजीआर पे, सुप्रीम कोर्ट की एक अनाउंसमेंट थी एजीआर पे. ये जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज होती हैं, ये क्या करती हैं, इनको जितना भी रेवेन्यू होता है टॉप लाइन पे 8% की लाइसेंस फी देनी होती है. सो दिस टेलीकॉम कंपनीज हैव टू पे 8% लाइसेंस फी ऑन देयर टॉप लाइन, ऑन देयर रेवेन्यू. सो ये जो एजीआर है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की लाइसेंस फी है, दिस लाइसेंस फी इज वेरी कॉमन, दिस इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये आपका ऑपरेशनल एक्सपेंस है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अक्टूबर 19 में एक अनाउंसमेंट आई थी, अक्टूबर 19 में, और उस वजह से वोडाफोन आइडिया ने हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सितंबर 2019 में सबसे हाईएस्ट लॉस बुक किया था, 60,000 करोड़ का, 60,000 करोड़ का लॉस एक क्वार्टर में बुक किया था, 60,000 करोड़ का. तो सर ये 60,000 करोड़ के अगर मैं लॉस की बात करूं, तो ये जो 60,000 करोड़ का लॉस है, ये क्या है, ये लाइसेंस फी का है, क्योंकि इनको पुरानी लाइसेंस फी पे करनी थी. दिस लाइसेंस फी इज ऑर्डिनरी इन नेचर, दिस इज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट दिस इज एक्सेप्शनल इन नेचर. लेकिन ये क्या है, एक्सेप्शनल है, दिस लाइसेंस फी इज एक्सेप्शनल. ओके, सो उन्होंने वो कहां दिखाया, एक्सेप्शनल आइटम में दिखाया. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शनल आइटम एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. इंड एएस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एवरीथिंग इज ऑर्डिनरी इन नेचर. अगर आपका कुछ ऐसा नुकसान होता है तो आपको उसको एक्सेप्शनल आइटम में दिखाना है. प्रायर पीरियड एरर की बात करूं मैं, सो इंड एएस में प्रायर पीरियड एरर एज अ सेपरेट लाइन आइटम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. अगर आपको पिछले साल की गलती इस साल में पता लगती है तो आपको पिछले साल के नंबर भी रीस्टेट करने हैं करंट ईयर में. मतलब जो कंपैरेटिव आप देते हो, कंपैरेटिव भी आपको रीस्टेट करने पड़ेंगे. So this is a big change between AS 5 and Ind AS 8. So Vidya ji is saying, what is the criteria of classifying an exceptional item? Vidya ji, any item which is operational in nature, which is in the ordinary course of business, could be exceptional if the size is material, if the value is material, and the substance is less frequent. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया प्रोविजन फॉर बेड डेट का, प्रोविजन फॉर बेड डेट ऑर्डिनरी इन नेचर है. अगर आप नॉर्मली प्रोविजन फॉर बेड डेट बुक करते हो, देन इट इज योर नॉर्मल एक्सपेंस. लेकिन अगर आपका कोई कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया और आपको बहुत मेजर लॉस हुआ है उस कस्टमर की वजह से, यू हैव टू शो इट एज अ एक्सेप्शनल आइटम. Okay, now coming to after AS4, AS5, AS6 has been deleted. AS7 is on construction contract. So accounting standard 7 construction contract की बात करता है, जहां पर आप percentage of completion method अप्लाई करते हो. अगर आपका आउटपुट सर्टेन है, अगर आउटकम सर्टेन है तो आप क्या करते हो, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड अप्लाई करते हो. अगर आउटकम सर्टेन नहीं है तो आपने जितनी कॉस्ट इनकर की है एटलीस्ट आप उतना रेवेन्यू बुक करते हो. ठीक है, तो AS7 का काउंटर पार्ट है इंड AS 115, जो कि रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर का स्टैंडर्ड है. AS7 के बाद AS8 नहीं है. AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करता है. AS9 कौन कौन से रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करता है, सेल ऑफ गुड्स की बात करता है, सेल ऑफ सर्विसेज की बात करता है, और इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड की बात करता है. अब AS9 में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, कोविड के सिनारियो में आपका एक क्लाइंट है और उसने मार्च तक रेवेन्यू बुक कर लिया, उसने फरवरी में कोई इनवॉइस रेज किए थे, उसने जनवरी में कोई इनवॉइस रेज किए थे, दिसंबर में कोई इनवॉइस रेज किए थे उसने, और उसने क्या किया, जो इनवॉइसेस रेज किए थे उसने, बाद में पता लगा
कि जो आपका क्लाइंट है और उस क्लाइंट के जो कस्टमर है उनका बिजनेस ही बंद हो गया, या दोज कस्टमर्स विल नॉट बी एबल टू पे देयर ड्यूज, तो क्या आप रेवेन्यू रिवर्स कर सकते हैं? 31 मार्च से पहले आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है और आज आप ऑडिट कर रहे हैं उस क्लाइंट का, सो अकॉर्डिंग टू AS9 कैन यू रिवर्स दैट रेवेन्यू? आपका क्लाइंट कह रहा है सर ये जो मैंने फरवरी मार्च में इनवॉइस रेज किए आप इनको रिवर्स कर दो। According to AS9 revenue cannot be reversed. So once revenue is recognized it cannot be reversed. आप इसका क्या करोगे? इसका bad debt का provision book करोगे। So you have to put provision for bad debt in your books of accounts. Okay? आप उसका bad debt का provision book करोगे। लेकिन सर अगर मान लीजिए क्लाइंट ने कोई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया और वो रेवेन्यू उस दिन पे, जिस दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया, जिस दिन बिल रेज किया, उस दिन पे that revenue was not collectible. उस दिन सर्टेनिटी नहीं थी कि कलेक्शन आएगी। If the revenue was not certain to be collectible, तो आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं करना है। अगर कोई अनसर्टेनिटी है in the recoverability of the revenue, then the revenue will not be recognized until and unless the certainty of collection will be established. According to AS9 तब तक आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ही नहीं करना है। So this was more about AS9 revenue recognition standard, revenue standard. AS10 की मैंने बात की accounting for fixed assets की, जिसका नाम बदल के property plant and equipment हो गया है। So AS10 में there was a big change. उसमें ये बोला गया कि AS10 में जो आपका recognition criteria है, जो initial cost के लिए criteria है वही subsequent cost के लिए भी criteria होगा। So सबसे बड़ा change इसमें ये है कि मान लीजिए आपने एक ट्रक खरीदा जिसकी लाइफ 10 साल है और ट्रक खरीदा आपने 25 लाख रुपए का। अब क्या हुआ, 5 साल के बाद उस ट्रक में आपको इंजन रिप्लेस करना पड़ रहा है। सो ट्रक का जो इंजन था वो खराब हो गया एंड द क्लाइंट हैज टू रिप्लेस द इंजन ऑफ अ ट्रक। सो स्टैंडर्ड ये कहता है अगर कोई मेजर रिप्लेसमेंट है, अगर कोई मेजर रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट है तो आप उसको कैपिटलाइज करोगे, आप उसको P&L में चार्ज नहीं करोगे। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 5 साल के बाद आपने ट्रक का इंजन रिप्लेस किया है और उस इंजन की कॉस्ट आई है 5 लाख रुपए। इन दैट केस that 5 lakh rupees has to be added to the cost of the truck. और ये जो 5 लाख रुपए हैं, ये जो 10 साल की लाइफ बची है, इस 10 साल की लाइफ में अमोर्टाइज होंगे, डेप्रिसिएट होंगे। और जो पिछले ट्रक के अंदर इंजन की कॉस्ट है, अब बात आती है सर इसमें तो 2 इंजन कैपिटलाइज हो गए। जब ट्रक हमने खरीदा था 25 लाख रुपए में 5 साल पहले, तो ट्रक इंजन के समेत ही आया था। सो इंजन वाज पार्ट ऑफ द ट्रक, सही कह रहा हूं मैं? और जब हमने 5 साल के बाद इंजन रिप्लेस किया तो भी आपने उसको ऐड कर लिया कॉस्ट में। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि पिछले जो इंजन की कॉस्ट है आप उसको डी रिकॉग्नाइज करोगे। अब सर हमें तो पता नहीं, जो हमें इनवॉइस मिला था, इनवॉइस में हमें सिर्फ ट्रक का इनवॉइस मिला था, हमें ट्रक का अलग और इंजन का अलग इनवॉइस नहीं मिला था। तो स्टैंडर्ड ये कहता है भाई साहब अगर कोई मेजर रिपेयर कॉस्ट है तो आपको कैपिटलाइज करनी है, और अगर आपको उसकी वैल्यू उस टाइम पे नहीं पता तो आपको करना क्या है, आपको जो आज की वैल्यू है आपको उसकी डिस्काउंटिंग करनी है। मतलब अगर आज मैंने 5 लाख रुपए लगाए हैं तो इस 5 लाख रुपए की वैल्यू 5 साल पहले क्या थी? मान लीजिए अगर डिस्काउंट रेट 10% का है, अगर इंटरेस्ट कॉस्ट 10% की है 5 साल के लिए, तो आपको इसको 10% पे डिस्काउंट करना है। और जब आप 5 लाख को 10% पे डिस्काउंट करोगे तो 5 साल पहले इसकी वैल्यू आती है 3 लाख रुपए। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सो 3 लाख रुपए आपको डी रिकॉग्नाइज करने हैं और 5 लाख रुपए आपको कैपिटलाइज करने हैं। Am I right? सो ये बहुत बड़ा चेंज आया है AS10 में। अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट है और कोई मेजर रिपेयर का खर्चा हो रहा है मशीनरी पे, तो आपको देखना होगा एंड दैट मेजर एक्सपेंडिचर हैज टू बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। ओके, सो ये बहुत बड़ा चेंज था AS10 में। अब मैं बात करता हूँ AS11 की। AS10 का जो काउंटर पार्ट स्टैंडर्ड है IND AS 16 है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और IND AS 16 और AS10 में कोई बहुत खास फर्क नहीं है। पहले बहुत चेंजेस होते थे, बट जब से 30th मार्च 2016 को AS10 रिवाइज हुआ, then there is a minimal change between AS10 and IND AS 16। अब मैं अगले स्टैंडर्ड पे चलता हूँ AS11 पे। AS11 है स्टैंडर्ड, AS11 है द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। सॉरी, AS11 से पहले मैं एक बात और करना चाहूंगा AS10 की। आपका एक मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट है और मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट आपका ये कहता है कि भाई साहब इस लॉकडाउन के चक्कर में मेरी जो फैक्ट्री थी, मेरी फैक्ट्री फरवरी से बंद है,
So I'm talking about, let's say March, I'm talking about financial year 1920. आप 19-20 के अकाउंट्स फाइनल कर रहे हैं, तो वो कह रहा है मेरी फैक्ट्री 2 महीने बन रही 20-21 19-20 में, और वो कह रहा है मेरी फैक्ट्री 4 महीने बन रही 20-21 में। तो बात आती है, क्या मैं इसका डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा? क्या मैं P&L में इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा? क्या करना चाहिए? Any view on this? So your client is saying, since my business operation was not happening at that point of time in the lockdown period, and my machinery has not been used, so I should not charge depreciation in my P&L for at least that period. So what do I need to do? क्या करना चाहिए? आप एज एन ऑडिटर क्लाइंट को क्या बोलोगे? डेप्रिसिएशन P&L में चार्ज कर या मत कर? सर इन दैट केस अकॉर्डिंग टू AS 10, जब आप AS 10 पढ़ते हो, AS 10 ये कहता है depreciation is applicable or depreciation should be charged when the asset is available for use. और इंस्टीट्यूट का इस पे गाइडेंस भी आया हुआ है, कोविड पीरियड में गाइडेंस आया था इंस्टीट्यूट का, जो ये कहता है कि the asset was available for use and hence depreciation should be charged to P&L. डेप्रिसिएशन आपको P&L में चार्ज करना है। आप क्लाइंट को एडवाइस मत देना कि आपका 3 महीने 2 महीने 4 महीने ऑपरेशन बंद थे तो आपको डेप्रिसिएशन P&L में चार्ज नहीं करना, उसको डेप्रिसिएशन P&L में चार्ज करना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। ओके, AS 11 बात करता है द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स की। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपने फॉरेन में एक मशीनरी खरीदी या फॉरेन में एक बिल्डिंग खरीदी, नॉट मशीनरी, बिल्डिंग खरीदी आपने फॉरेन में। आपने वो बिल्डिंग खरीदी थी $1,00,000 की। आपकी कंपनी है, लेट्स से आपकी पार्टनरशिप फर्म है, आपकी कंपनी है, कोई अनलिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है। उस अनलिस्टेड कंपनी की एक बिल्डिंग है जो कि फॉरेन कंपनी में है, USA में है बिल्डिंग। वो आपने पिछले साल $1,00,000 की खरीदी थी, और उस जो बिल्डिंग की पेमेंट करनी है, और एक दूसरी ट्रांजैक्शन है, आपने चाइना से रॉ मटेरियल खरीदा है, वो आपने $2,00,000 का खरीदा। तो एक तो आपने बिल्डिंग खरीदी हुई है $1,00,000 की, दूसरा आपने एक पेमेंट करनी है चाइनीज सप्लायर को, वो $2,00,000 की पेमेंट करनी है। 31 मार्च 2020 को हम अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू AS 11, इस बिल्डिंग का और इस चाइनीज सप्लायर का, इस फॉरेन सप्लायर का पेमेंट टू फॉरेन सप्लायर जो आउटस्टैंडिंग है, इन दोनों का क्या ट्रीटमेंट होगा? एक मेरे पास फॉरेन बिल्डिंग है, दूसरा मेरे पास आउटस्टैंडिंग टुवर्ड्स फॉरेन सप्लायर है, तो आप इन दोनों का बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट करेंगे? एनी व्यू ऑन दिस? एनी व्यू? सर जो फॉरेन बिल्डिंग है दैट इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम, फॉरेन बिल्डिंग इज नॉन मॉनेटरी आइटम, और स्टैंडर्ड कहता है अगर आपका कोई नॉन मॉनेटरी एसेट है तो आपको नॉन मॉनेटरी एसेट का क्या करना है? आपको नॉन मॉनेटरी एसेट को हिस्टोरिकल रेट पे रखना है, हिस्टोरिकल रेट पे। और ये जो पेमेंट टू फॉरेन सप्लायर है, आउटस्टैंडिंग टुवर्ड्स फॉरेन सप्लायर है, दिस इज अ मॉनेटरी लायबिलिटी। और मॉनेटरी लायबिलिटी का हम क्या करेंगे? सो मॉनेटरी लायबिलिटी हैज टू बी रीस्टेटेड एट द क्लोजिंग रेट। आपको देखना पड़ेगा क्लोजिंग रेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने ये माल खरीदा था, जब आपने चाइना से गुड्स खरीदे थे, तो आपने लायबिलिटी रिकॉर्ड करी थी $2,00,000 मल्टीप्लाई बाय 70 रुपीज। आज की डेट में डॉलर का रेट 75 का हो गया है क्लोजिंग रेट 31 मार्च को। सो यू हैव टू रीस्टेट this from 70 to 75 and you have to recognize a liability from 2 lakh multiplied by 75. So this 5 rupee has to be recorded as a unrealized foreign exchange loss. Okay, clear? So monetary और non monetary item का ये treatment होगा। पैरा 46A के बारे में मैंने आपको बताया। So पैरा 46A क्या कहता है? पैरा 46 और पैरा 46A ये कहते हैं कि अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी आइटम लिया हुआ है, कोई लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन लिया हुआ है फिक्स एसेट के लिए, तो आप क्या कर सकते हो? उसका जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस होगा या गेन होगा, आप उसको एसेट में भी एडजस्ट कर सकते हैं और P&L में भी लेकर जा सकते हैं। ओके, यस। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू AS 12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स।
सो अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, यहाँ पर आपको प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देखना है। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स इन द नेचर ऑफ कैपिटल ग्रांट, इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू ग्रांट, उसका ट्रीटमेंट दिया हुआ है। सो अगेन यू नीड टू लुक एट दिस स्टैंडर्ड AS12। AS12 और IND AS 20 की अगर मैं बात करूं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में IND AS 20 इज देयर व्हिच टॉक्स अबाउट अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, एंड वहां पर डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस की भी बात करता है। अगर गवर्नमेंट आपको कोई नॉन मॉनिटरी सपोर्ट दे रही है तो उसका भी डिस्क्लोजर IND AS में आता है, which is not required in accounting standard. Okay, AS12 के बाद AS13 है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट का स्टैंडर्ड है। अगर मैं AS13 की बात करूं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट में दो चीजें हैं, एक आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, एक आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, विच इज नॉन एज अ करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं? For example, a company has made an investment in the shares of Infosys. So short term investment है कंपनी की, और कंपनी ने Infosys के शेयर 100 रुपए में खरीदे हैं। At the reporting date, this 100 rupees become 125. This 100 become 125. तो इस 25 रुपीस का गेन हम रिकॉर्ड करेंगे। मैं करंट इन्वेस्टमेंट को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा? So at what value I need to record this current investment? 100 पे करूंगा, 125 पे करूंगा, किस वैल्यू पे करूंगा? इज इट 100 और 125? सर करंट इन्वेस्टमेंट कहता है, करंट इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग करते हो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, सो लोअर पे, सो मार्केट वैल्यू इज 125 एंड कॉस्ट इज 100, सो यू हैव टू रिकॉर्ड इट एट 100। लेकिन अगर इन्फोसिस के शेयर की वैल्यू अगर 100 से 80 हो गई है तो क्या करेंगे? 100 से अगर 80 हो गई है तो सो यू हैव टू रिकॉर्ड इट एट 80। आप इसको लोअर पे रिकॉर्ड करेंगे और 20 रुपए का आप लॉस बुक करेंगे, 20 रुपए का आप लॉस बुक करेंगे। ओके, सो IND AS 109 क्या कहता है? IND AS 109 क्या कहता है? IND AS 109 ये कहता है कि आप इसको अगर लॉस है या प्रॉफिट है, आपको इसको फेयर वैल्यू पे करना है, आपका अगर लॉस है या प्रॉफिट आपको दोनों ही रिकॉर्ड करने हैं। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सिर्फ कंजर्वेटिव चलते हुए सिर्फ लॉस बुक करना है, प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करना है, अनरियलाइज्ड गेन रिकॉर्ड नहीं करना, अनरियलाइज्ड लॉस रिकॉर्ड करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या रूल है? सो AS 13 कहता है इफ इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट लेस प्रोविजन फॉर डिमिनिशन अदर देन टेम्पररी। व्हाट डज इट मीन? It is not permanent provision for diminution. It is provision for decline. If it is provision for decline other than temporary means permanent. So the word written is provision for diminution other than temporary. अगर कोई permanent diminution है तो आपको उसका provision लेना है. Otherwise long term investment has to be stated at cost. IND AS में क्या करते हैं? अगर वो current investment है या long term investment है, कोई भी investment है, आपको उसको fair value पे record करना है, चाहे fair value कम हो या fair value ज्यादा हो। AS 14 की बात करता हूं, अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन की। बहुत बड़ा चेंज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IND AS में। AS 14 बात करता है दो मेथड की। अगर आप कोई अमालगमेशन कर रहे हो या बिजनेस एक्विजिशन कर रहे हो तो या तो आप उसको परचेज मेथड पे अकाउंट फॉर करते हो या आप उसको पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड पे अकाउंट फॉर करते हो। व्हाट इज पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड मतलब लाइन बाय लाइन आप उसको ऐड करते हैं। और जो AS 14 है उसका एक पैरा ये कहता है कि जब भी आप कोई बिजनेस एक्विजिशन कर रहे हैं, ईदर यू हैव टू रिकॉर्ड दैट बिजनेस एक्विजिशन ईदर एट कॉस्ट और एट अ फेयर वैल्यू, बट फेयर वैल्यू इज नॉट मैंडेटरी। अंडर IND AS अगर आप कोई भी बिजनेस एक्विजिशन कर रहे हैं, इट हैज टू बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। सो दिस इज अ बिग चेंज बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। IND AS 103 is a counterpart standard of accounting standard 14. AS 15 employee benefit, ये स्टैंडर्ड ऐसा स्टैंडर्ड है जहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट को कुछ करना ही नहीं होता। करना किसको होता है? एक्चुअरी को करना होता है। जो ग्रेचुटी की एक्चुरियल वैल्यूएशन है कौन करता है? ग्रेचुटी की एक्चुरियल वैल्यूएशन एक्चुअरी करता है। 4 तरह के एम्प्लॉय बेनिफिट होते हैं, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट और टर्मिनेशन बेनिफिट। अब यहां पर जब मैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड, तो 2 तरह के प्लान होते हैं, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान और डिफाइंड बेनिफिट प्लान।
Now I want to understand what is the difference between defined benefit plan और defined contribution plan. क्योंकि defined contribution plan की आपको actuarial valuation नहीं करानी होती, अगर defined benefit plan है तो आपको उसकी actuarial valuation करानी पड़ेगी. दोनों में फर्क क्या है? Defined contribution plan is that plan whose contribution is defined. Whose contribution is defined. For example, provident fund. अगर सैलरी 100 रुपए है तो प्रोविडेंट फंड 12 रुपए का आपको जमा कराना है. Your liability is limited to 12 rupees. So this is known as a defined contribution plan. और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का सिर्फ आपको डिस्क्लोजर करना पड़ता है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड कितना है. बट इफ इट इज अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान, फॉर एग्जांपल ग्रेच्युटी, so gratuity is not a defined contribution plan, it is a defined benefit plan. Defined benefit plan are those plan where benefits are defined. इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल ग्रेच्युटी के केस में आज एक एम्प्लॉई उसने कंपनी ज्वाइन की, उसकी सैलरी है 5 लाख रुपए साल की और उसने 25 साल की उम्र में कंपनी ज्वाइन की. 58 साल की उम्र में वो रिटायर होगा 58 इयर्स की एज में. सो आफ्टर 33 years he will retire from the company. And when he will retire, for example, आज उसकी सैलरी 5 लाख रुपए है, उस टाइम पे उसकी सैलरी 5 करोड़ रुपए होगी जब वो 33 इयर्स के बाद रिटायर होगा. तो मुझे बताइए जो ग्रेच्युटी मिलेगी क्या वो 5 लाख के बेसिस पे मिलेगी या 5 करोड़ के बेसिस पे मिलेगी? फॉर्मूला क्या है ग्रेच्युटी का? 15/26 मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months. 15/26 मल्टीप्लाई बाय completed year of service or part thereof in excess of 6 months multiply by last drawn salary. मतलब 15/26 multiply by 33 multiply by जो उस दिन की सैलरी होगी 33 साल के बाद, उस पे ग्रेच्युटी मिलेगी. लेकिन क्या प्रोविडेंट फंड, सारा का सारा प्रोविडेंट फंड 33 साल का, क्या आपको 33 इयर्स के बाद जमा कराना? आंसर इज नो. इफ टुडे सैलरी इज 5 lakh, your liability is limited to, your contribution is limited to 12% of 5 lakh. If in the next year this salary will become 7 lakh, your contribution to provident fund is limited to 12% of 7 lakh. In the next year, if it has become 10 lakh, your liability is limited to 12% of 10 lakh. So it is known as a defined contribution plan. और defined contribution plan में कोई valuation कराने की जरूरत नहीं होती. But defined benefit plan में actuary has to take lot of assumption, and hence he has to get the actuarial and hence he has to do the actuarial valuation for this gratuity liability, जिसमें वो देखता है attrition rate क्या है, रिटायरमेंट एज क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है. तो ये सारी की सारी चीजें एक्चुअली देखता है एज पर LIC सेंसस. ओके, डिस्काउंट रेट क्या है. अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूं. जनरली हम एक्चुरियल वैल्यूएशन देखते नहीं है, एक्चुरी की रिपोर्ट नहीं देखते, लेकिन आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर चाहो तो पूरी की पूरी एक्चुरी रिपोर्ट को आप वैल्यू कर सकते हो, पूरी की पूरी एक्चुरियल रिपोर्ट को आप ऑडिट कर सकते हैं. उसमें एक डिस्काउंट रेट का सेक्शन होता है, डिस्काउंट रेट का. सो मान लीजिए अरुण जी की 2 कंपनियां हैं, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड. अब एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों में एम्प्लॉइज हैं. सो अरुण जी क्या करते हैं, जब एक्स लिमिटेड की एक्चुरियल वैल्यूएशन कराते हैं तो डिस्काउंट रेट निकल कर आता है 8% का. लेकिन जब अरुण जी वाई लिमिटेड की एक्चुरियल वैल्यूएशन कराते हैं तो डिस्काउंट रेट आता है 7.8% का. और ये डिस्काउंट रेट होता क्या है? डिस्काउंट रेट इज अ इंटरेस्ट रेट ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट रेट होता है. अब अगर अरुण जी की दोनों कंपनियां गुड़गांव में हैं, इंडिया में हैं, दिल्ली में हैं, और दोनों ही कंपनीज पे इंटरेस्ट रेट हम ले रहे हैं डिस्काउंट रेट के लिए, इंटरेस्ट रेट जो ले रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ले रहे हैं, तो दोनों डिस्काउंट रेट अलग अलग क्यों हैं? आप आज की डेट में किसी भी लिस्टेड कंपनी का, 3-4 लिस्टेड कंपनी का आप एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिए, और जब आप नोट्स टू अकाउंट्स में एक्चुरियल वैल्यूएशन के सेक्शन में जाएंगे, एक्चुरियल डिस्क्लोजर के सेक्शन में, तो डिस्काउंट रेट आपको अलग अलग मिलेगा. ऐसा क्यों होता है? एज एन ऑडिटर हाउ कैन यू इंश्योर कि डिस्काउंट रेट ठीक है? सर ये जो डिस्काउंट रेट होता है ये इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट रेट ईयर वाइज अलग अलग होता है. अगर 5 साल के बॉन्ड है इंटरेस्ट रेट अलग होगा, 8 साल के बॉन्ड है इंटरेस्ट रेट अलग होगा. जैसे आप FD में पैसा लगाते हो, जब आप FD में पैसा लगाते हो तो HDFC की वेबसाइट पे जाओगे तो 1 साल तक का रेट अलग होगा, 3 साल का रेट अलग होगा, 3 साल से ऊपर का रेट अलग होगा. सो लाइकवाइज इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी रेट अलग अलग होता है. अब ये रेट हम देखते हैं कौन से टर्म का है? हम ये देखते हैं कि उस कंपनी में जो एम्प्लॉइज हैं उन एम्प्लॉइज की रिमेनिंग लाइफ कितनी बची है. रिमेनिंग लाइफ का मतलब उनकी अनएक्सपायर्ड लाइफ कितनी बची है. फॉर एग्जांपल सारे के सारे एम्प्लॉइज 40 साल के हैं,
और रिटायरमेंट एज 58 ईयर्स है, तो मैं ये देखता हूं कि मेरा एट्रिशन रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग मेरी रिटायरमेंट एज कितनी बची है। फॉर एग्जांपल 18 साल बची है, तो मैं डिस्काउंट रेट 18 साल का लेता हूं। अगर किसी कंपनी में यंग ब्लड ज्यादा है, किसी कंपनी में यंगस्टर्स ज्यादा हैं, जैसे केपीओ, बीपीओ, उसमें यंगस्टर ज्यादा होते हैं, 25 साल, 30 साल, 32 साल के लड़के ज्यादा होते हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर द रिमेनिंग लाइफ ज्यादा होगी, अनएक्सपायर्ड लाइफ ज्यादा होगी, तो वहां पर डिस्काउंट रेट अकॉर्डिंग टू दैट पीरियड होगा। फॉर एग्जांपल 25 साल, 28 साल या 30 साल का डिस्काउंट रेट होगा। ओके, so that is why discount rate is different from one company to another company depending upon the unexpired life or remaining age of the employees in the company. Okay, so after that AS 15 के बाद AS 16 borrowing cost का स्टैंडर्ड है। so ये borrowing cost का जो स्टैंडर्ड है, ये बात करता है क्वालिफाइंग एसेट की। ये कहता है इंटरेस्ट कॉस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी कैपिटलाइज्ड ऑन द क्वालिफाइंग एसेट। अब एक क्वालिफाइंग एसेट का मतलब क्या होता है? so qualifying asset means the asset which takes a substantial period of time for getting ready for intended use or sale। अगर किसी एसेट में substantial period of time लगता है for getting ready for intended use or sale। अब ये substantial period of time define है क्या कहीं? substantial period of time is defined under, पहले एक इंटरप्रिटेशन होती थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन ASI 1, वहां पर substantial period of time डिफाइन किया गया था। लेकिन 2012 में ये जो ASI 1 में जो डेफिनेशन है वो AS 16 के अंदर ही डाल दी गई। तो जहां आप क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन पढ़ोगे, नीचे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम को भी डिफाइन किया गया है, विच इज मोर देन 1 ईयर। अगर 1 साल या उससे ज्यादा है, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इन डेज में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम को डिफाइन नहीं किया गया है। अगेन इट इज जजमेंटल इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, सो AS 16 में अब कोविड सिनारियो में, फॉर एग्जांपल कोविड सिनारियो में देयर वाज अ कंस्ट्रक्शन साइट, द कंपनी वाज एंगेज्ड इनटू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री। अब 3 महीने तक कोई कंस्ट्रक्शन हुई नहीं, आपने बैंक से लोन लिया हुआ है कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, तो जो 3 महीने का ब्याज है, जो 3 महीने का इंटरेस्ट है, whether it will be capitalized as a cost of the asset, whether it will be capitalized as a cost of building, or it will be charged off to the P&L। क्या करेंगे इसका? इस पे भी इंस्टीट्यूट की एक एडवाइजरी आई थी, कोविड एडवाइजरी, और AS 16 कहता है if there is a suspension of capitalization, if there is a suspension of capitalization and due to which the active development of the asset has been interrupted, in that case that interest cost or borrowing cost will be debited to P&L, will be charged to P&L। तो इस केस में आप उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, आप उसको P&L में चार्ज करेंगे। AS 16 के बाद AS 17 है। AS 17 लीजेस का स्टैंडर्ड है, और अगर मैं इसको इंड AS से कंपेयर करूं तो बहुत मेजर चेंज है। इंड AS में तो पूरा सिनारियो ही चेंज हो चुका है लीज अकाउंटिंग का। देयर इज अ स्टैंडर्ड इंड AS 116 नया स्टैंडर्ड आया है। व्हाट इज AS 17? AS 17 क्या कहता है? लीजेस का स्टैंडर्ड AS 17 क्या कहता है? AS 17 ये कहता है दो तरह की लीज होती है, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज कौन सी होती है? जैसे मान लीजिए कि आपने 3 साल के लिए किराए पे ऑफिस लिया, दैट इज ऑपरेटिंग लीज वेयर रिस्क एंड रिवार्ड हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड। लेकिन अगर आपने एक बिल्डिंग 25 साल के लिए किराए पे ली और बिल्डिंग की लाइफ 20 से 30 साल है, सॉरी 25 से 30 साल है, इन दैट केस इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज में क्या करते हो? लेसी क्या करता है? P&L में खर्चा रिकॉर्ड करता रहता है, रेंट का खर्चा बुक करता रहता है। बट फाइनेंस लीज में लेसी क्या करता है? अपने यहाँ पर लीज होल्ड एसेट रिकॉर्ड करता है अपने यहाँ, ओके, और लीज होल्ड ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड करता है एज अ लायबिलिटी। लीज होल्ड एसेट किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करता है? जो भी फ्यूचर लीज रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू होगी उस पे उसको रिकॉर्ड करता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फाइनेंस लीज के इंडिकेटर कौन कौन से हैं? कैन यू रिमेंबर? ये लीज इज अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग in various clients बैलेंस शीट। आपके जितने क्लाइंट होंगे वहां कहीं ना कहीं लीज तो होगी। तो फाइनेंस लीज के इंडिकेटर कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात कि आपकी जो लाइफ ऑफ द एसेट है, इफ इट इज इक्वल टू मेजर इकोनॉमिक लाइफ, आपका जो लीज टर्म है अगर लाइफ ऑफ द एसेट के इक्विवेलेंट हो, मतलब मेजॉरिटी लाइफ ऑफ द एसेट को कवर करता हो। फॉर एग्जांपल 25 साल की आपने बिल्डिंग ली है लीज पे, बिल्डिंग की लाइफ 30 साल है, सो इट इज वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ फाइनेंस लीज। दूसरा, आप जितना भी पेमेंट कर रहे हो, लीज रेंटल जितना भी पे कर रहे हो, सो टेक्निकली दैट लीज रेंटल इज सब्सटेंशियली इक्विवेलेंट टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। तीसरा,
अगर लेसर आपको लीज टर्म के एंड में परचेज का ऑप्शन देता हो। चौथा, अगर लेसर आपको ऑफर करता है कि अगर आप परचेज करोगे तो आपको बहुत ही रीजनेबल वैल्यू पे आपको परचेज करने को दिया जाएगा, हम आपको बहुत ही नॉमिनल वैल्यू पे सेल करेंगे इस एसेट को। पांचवा, द एसेट इज ऑफ ए स्पेशलाइज्ड नेचर, अगर एसेट स्पेशलाइज्ड नेचर की है, ठीक है। सो दिस इज AS 17। AS 18 की बात करूं मैं, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। सो AS 18 बताते हैं आपके रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स कौन कौन से होंगे। एंड AS 18 सेज दैट अगर आपका रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन है तो ही डिस्क्लोज करना है, लेकिन अगर आपकी कोई सब्सिडरी है, अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट है, तो ये आपको डिस्क्लोज करने ही करने हैं, चाहे आपका ट्रांजैक्शन हो या आपकी ट्रांजैक्शन ना हो। सो सॉरी, AS 17 आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग का था, AS 19 लीजेस का है, मैं गलत बोल गया। AS 19 इज ऑन लीजेस, वो मैंने आपको बता दिया। AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड था, जो कि बिजनेस सेगमेंट या ऑपरेटिंग सेगमेंट की बात करता है, ऑपरेटिंग सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट की बात करता है। AS 20 बात करता है अर्निंग्स पर शेयर की, बेसिक अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। ओके, सो वन इज बेसिक अर्निंग्स पर शेयर एंड वन इज डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि आपके क्लाइंट ने एक बोनस शेयर इशू किए, आपका कोई अनलिस्टेड क्लाइंट है और उसने बोनस शेयर इशू किए, करंट ईयर में उसने बोनस शेयर इशू किए हैं और करंट ईयर में उसने 1 अक्टूबर को बोनस शेयर इशू किए हैं, तो आप उसका बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे? और बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है? सो इट इज प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, सो नाउ द क्लाइंट हैज इशूड द बोनस शेयर ड्यूरिंग द ईयर, उसने ड्यूरिंग द ईयर इशू किए हैं, तो हम क्या करेंगे, इस बोनस शेयर को वेटेड एवरेज में 6 मंथ्स के लिए कंसीडर करेंगे या हम पूरे साल के लिए कंसीडर करेंगे? दूसरा, कंपैरेटिव में हम इसका कंपैरेटिव भी रीस्टेट करेंगे या नहीं करेंगे? क्या करेंगे? सो स्टैंडर्ड ये कहता है अगर बोनस शेयर है, सो बोनस शेयर इज लाइक अ फ्री शेयर, इन दिस केस यू हैव टू टेक द बोनस शेयर फॉर द कंप्लीट ईयर, फॉर द कंप्लीट ईयर। आप उसके वेटेड एवरेज निकालने के लिए इसको डे 1 से कंसीडर करोगे और प्रीवियस ईयर में भी आप इसको रीस्टेट करोगे, आप इसको ये कंसीडर करोगे कि ये बोनस शेयर प्रीवियस ईयर में भी डे 1 से थे, और उसके बाद आप उसकी रिवाइज अर्निंग्स पर शेयर निकालोगे। व्हाट इज डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर? डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर मतलब अगर आपके पास कोई पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, फॉर एग्जांपल कन्वर्टिबल डिबेंचर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, तो आप क्या करेंगे, इस कन्वर्टिबल डिबेंचर या कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर की वजह से मेरी जो भी कॉस्ट आती है मैं उसको प्रॉफिट में ऐड करूंगा नेट ऑफ टैक्स, और नीचे मेरे जितने भी कन्वर्टिबल डिबेंचर या कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर से मेरे जितने भी शेयर्स इशू होंगे, आई हैव टू add that in the denominator for calculating my diluted earning per share. AS 21 is a standard on consolidation of subsidiary. So this talks about subsidiary consolidation, जहां पर आपको लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन करना है, आपको इंटर ग्रुप एलिमिनेशन करनी है। सब्सिडरी की अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपकी पेरेंट की इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में है और इन्वेस्टमेंट की बुक्स में शेयर कैपिटल है तो ये एलिमिनेट होगी, एंड कंसोलिडेशन में ओनली पेरेंट शेयर कैपिटल विल बी सर्वाइव्ड। AS 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम की बात करता है। सो AS 22, अगर मैं इस कोविड सिनारियो में AS 22 की बात करूं, लेट मी टेल यू देयर इज अ मेजर इंपैक्ट ऑन योर क्लाइंट्स। सर AS 22 बात करता है करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की। डेफर्ड टैक्स में देयर आर टू काइंड ऑफ डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो आपको रिकॉर्ड करनी है। सो यू आर सेइंग दैट इफ माय लायबिलिटी विल अराइज इन फ्यूचर, so today I am not liable to pay tax, tomorrow I will be liable to pay tax, so on that item you are required to recognize deferred tax liability. Okay, so now if you have recognized a deferred tax asset, for example in case of 43B, जहां पर आप बोनस को डिसअलाउ करते हो, ग्रेचुइटी को डिसअलाउ करते हो, प्रोविडेंट फंड को डिसअलाउ करते हो, और आप उसको अलाउ करते हो जब आप उसकी पेमेंट कर देते हो, तो इस पे हम क्या करते हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट बनाते हैं। मतलब आज मैंने ज्यादा टैक्स पे कर दिया है, अगले साल मुझे इसका बेनिफिट मिल जाएगा। सो वी आर रिकॉग्नाइजिंग डेफर्ड टैक्स एसेट। ओके, नाउ द थिंग इज डेफर्ड टैक्स एसेट हम रिकॉग्नाइज कब करते हैं? सो स्टैंडर्ड सेज दैट व्हेन देयर इज अ वर्चुअल सर्टेनिटी एंड कन्विंसिंग एविडेंस, व्हेन देयर इज अ वर्चुअल सर्टेनिटी एंड कन्विंसिंग एविडेंस दैट दिस डेफर्ड टैक्स एसेट विल बी रियलाइज्ड, इन दैट केस यू आर रिकॉग्नाइजिंग डेफर्ड टैक्स एसेट। सो आज की डेट में अगर आपका क्लाइंट ऑलरेडी लॉस में है
या आपका क्लाइंट प्रॉफिट में था बट ड्यू टू कोविड सिनेरियो द डिमांड हैज बीन डिक्लाइंड. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, in case of a luxury industries, so the demand has been sharply declined. In case of a real estate, आज की डेट में सारा वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है. सो आप जितनी भी कंपनीज में बात करोगे, सो दे आर प्लानिंग टू वेकेट वन ऑफ देयर प्रीमाइसेस. व्हाई? बिकॉज दिस कोविड, द कंपनीज आर फोरसीइंग दैट दिस कोविड विल नॉट बी सेटल्ड इन द नियर फ्यूचर. और अगर उनकी 100% अगर उनका स्टाफ है, 100 लोगों का स्टाफ है, सो एटलीस्ट दे वांट टू गेट द स्टाफ वर्क फ्रॉम होम फॉर एटलीस्ट 20% और 30%, ताकि उनकी उतनी कॉस्ट भी कम आए. तो अगर आपका क्लाइंट इन इंडस्ट्री से बिलोंग करता है तो आपको देखना होगा, आपको अपने क्लाइंट से आपको प्रोजेक्शन मांगनी होगी कि भैया फ्यूचर में तेरा प्रॉफिटेबिलिटी लेवल क्या होगा, ये बता मुझे. सो अकॉर्डिंगली यू नीड टू रिकॉग्नाइज डेफर्ड टैक्स एसेट और यू नीड टू रिवर्स which the deferred tax asset which has already been recognized. हो सकता है लास्ट ईयर आपने अलाउ किया हो, आपने बोला हो कि डेफर्ड टैक्स एसेट आप रिकॉग्नाइज कर लो, बट जब आप इस साल में आए ड्यू टू कोविड सिनेरियो there is no any probability for getting the profit for at least in the next 4-5 years. So in that case आपको इस DTA को रिवर्स कराना पड़ेगा. So there will be a hit in the P&L. So you need to see that. AS 23 talks about joint associate consolidation. आप एसोसिएट की कंसोलिडेशन कब करते हो? एज पर इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग करते हो. सो तीन तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट, जॉइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट इन्वेस्टमेंट. सो आई नो थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इस टॉपिक में नींद भी बहुत अच्छी आती है. लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने एक कहावत यूट्यूब पे ही देखी थी. सो एक किसान था, देयर वाज अ फार्मर, और फार्मर ने 2-4 लैंड और खरीद ली थी फॉर दिस एग्रीकल्चरल पर्पसेस. सो नाउ ही वाज नॉट एबल टू मैनेज ऑल दिस लैंड्स. वो सारी लैंड मैनेज नहीं कर पा रहा था. तो उसने इंटरव्यू लेने शुरू किए. उसने कहा कि लोगों का इंटरव्यू लेता हूं और लोगों को रख लेता हूं ताकि वो मेरे बिहाफ पे काम करें. तो उसने बहुत सारे लोगों को बुलाया पर कोई समझ नहीं आया. एक बंदा आया और उसने पूछा कि भाई साहब तुम काम कैसे करोगे? तो उसने बोला कि आई विल स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज. जब बहुत तेज हवा चलेगी तो मैं सो जाऊंगा. अब उसने अंग्रेजी में बोला, किसान को समझ नहीं आया, किसान ने उसको रख लिया. अब क्या हुआ, एक बार बहुत तेज आंधी आई. तो जब बहुत तेज आंधी आई वो किसान भागा रात को कि कहीं मेरी सारी फसलें खराब ना हो जाए, मेरी क्रॉप्स खराब ना हो जाए, मेरी जितनी कैटल्स हैं कहीं वो भाग ना जाए, कहीं वो भीग ना जाए, बीमार ना हो जाए. तो उसने उठाया उसको, उठ. वो उठा नहीं. तो कहता भाई इतनी तेज आंधी आ रही, उठ तो जा. तो उसने कहा मैंने बोला तो था आई विल स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज. तो किसान भागा. उसने कहा चलो मैं ही कर लेता हूँ, ये तो उठेगा नहीं. तो जब वो भागा उसने देखा कि जितनी भी उसकी क्रॉप्स थी दैट वर प्रॉपर्ली कवर्ड, वो प्रॉपर कवर की हुई थी. जितने भी उसके कैटल थे दैट वाज प्रॉपर्ली टाइड अप, सबको अच्छे से बांधा हुआ था. तो उसको बात समझ में आ गई. उसको बात ये समझ में आ गई, मतलब उस बंदे का मतलब ये था कि मैं अपना सारा काम पहले ही ऐसे करके रखूंगा ताकि कल को आंधी आए तो मुझे भागना ना पड़े. सो मतलब दैट गाय वाज प्रोएक्टिव इन नेचर. सो लाइकवाइज वी शुड बी प्रोएक्टिव. मैंने बताया आपको ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS में बदलने वाले हैं, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पढ़ना ही पड़ेगा. और जिस तरीके से रेगुलेटर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के पीछे लगे हुए हैं, सो यू हैव टू सी द एंटायर कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सो यू हैव टू प्रोएक्टिव like that person who was working under that farmer. So you need to sleep when the wind blows. So that was the moral of the story. So coming to again AS 23 पे दोबारा आ जाते हैं. So AS 23 में joint venture consolidation की बात करता है और वो बताता है कि जब जॉइंट वेंचर का आप कंसोलिडेशन, एसोसिएट का कंसोलिडेशन करोगे तो इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग करोगे. AS 24 की अगर मैं बात करूं तो AS 24 बात करता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की, कि अगर आप एक ऑपरेशन को 3 प्रोडक्ट लाइन है आपकी और एक फैक्ट्री बंद कर रहे हो, एक बिजनेस वर्टिकल अगर आप बंद कर रहे हो, एक प्रोडक्ट लाइन बंद कर रहे हो, तो आपको उसका सेपरेट डिस्क्लोजर करना है. आपको बताना है कि रेवेन्यू कितना है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से आपके एक्सपेंस कितने हैं, टैक्स कितना रिलेटेड है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, ये सारी चीजें आपको करनी है. सो AS 24 के बाद AS 25 है. लार्जली AS 25 इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, क्योंकि AS 25 उन एंटिटी पे एप्लीकेबल होता है जो लिस्टेड होती है, क्योंकि ये इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड. सो AS 26 इज ऑन इंटेंजिबल एसेट. इंटेंजिबल एसेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इंटेंजिबल एसेट की जो लाइफ होती है वो डेफिनेट भी हो सकती है और इनडेफिनेट भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है और इनडेफिनेट भी हो सकती है. पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है अगर आपको लाइसेंस की लाइफ नहीं पता, अगर आपको ब्रांड की लाइफ नहीं पता, आपको ये नहीं पता गुडविल
मेरी कितने साल तक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगी। तो आपको क्या करना है, आपको लाइफ को मैक्सिमम 10 साल मानना है, लेकिन ये जो 10 साल की रिबटेबल प्रिजम्पशन है वो इंड एएस में नहीं है। इंड एएस में लाइफ कुड बी इंडेफिनिट, सो देयर इज अ बिग चेंज बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंड एएस इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, एएस 27 की बात करूं तो जॉइंट वेंचर कंसोलिडेशन की बात करता है। एएस 27 जॉइंट वेंचर कंसोलिडेशन की बात करता है और ये कहता है अगर जॉइंट वेंचर है आपका तो आपको उस पर प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन करना है, मतलब लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन करना है। फॉर एग्जांपल, भारतीय इंफ्राटेल का 42% स्टेक है इंडस टावर लिमिटेड में। सो भारतीय इंफ्राटेल इंडियन गैप में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या करता था कि इंडस टावर के जितने भी बैलेंसेस होते थे उनको मल्टीप्लाई बाय 42% करके लाइन बाय लाइन ऐड करता था सब्सिडरी की तरफ। सो दिस इज नॉन एज अ प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन। लेकिन प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन इंड एएस में नॉट अलाउड फॉर जॉइंट वेंचर। फॉर जॉइंट वेंचर इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन इज अलाउड। So this is a big change between accounting standard and Ind AS. So after AS 27, AS 28 is there, which is on impairment of asset. So let me tell you, ये ऐसा स्टैंडर्ड है जिसपे एटलीस्ट जो मीडियोकर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो मीडियोकर फर्म्स हैं, वो इस पे काम नहीं करती हैं। AS 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। अगर आप इंस्टीट्यूट की एडवाइजरी पढ़ो जो कोविड पे एडवाइजरी आई थी, उस एडवाइजरी में सबसे बड़ा गाइडेंस ही इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स पे है। सो इस कोविड सिनारियो में यू नीड टू सी whether impairment is required or not. You need to do the impairment testing. आपको impairment testing करनी पड़ेगी क्लाइंट के एसेट्स की। आपको क्लाइंट को बोलना पड़ेगा कि तू चेक करके बता कि तेरे जो एसेट की रिकवरेबल वैल्यू है वो कैरिंग वैल्यू से कम तो नहीं है। अगर एसेट की रिकवरेबल वैल्यू कैरिंग वैल्यू से कम है, then there is a need for charging impairment loss. So this impairment of asset is very important from the COVID scenario while finalizing the books of accounts and while auditing the books of accounts. उसके बाद AS 29 है प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिंजेंट एसेट का स्टैंडर्ड। सो प्रोविजन के स्टैंडर्ड में मैंने बताया 30 मार्च 2016 में देयर वाज अ चेंज एंड चेंज वाज प्राइमरली फॉर द डिस्काउंटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोविजन ऑन अकाउंट ऑफ एसेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन। ओके, सो अदरवाइज ये कहता है प्रोविजन, जितने भी आपको प्रोविजन है वो बेस्ट एस्टिमेट के बेसिस पे आपको रिकॉग्नाइज करने हैं। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को आपको डिस्क्लोज करना है, कॉन्टिंजेंट एसेट को आपको डिस्क्लोज करना है। So this was about AS 29. So I have briefed you on AS 1 to AS 29. So the agenda was overview of accounting standard and overview of Ind AS. So Ind AS की भी मैंने बात की, there are 39 Indian accounting standard. अब Ind AS सिनारियो में कुछ नए स्टैंडर्ड भी हैं जिसकी हम बात कर लेते हैं क्विकली। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं। So this is a comprehensive slide which I am going to share with all of you. ये सारी बातें मैं कर चुका हूं। यस, सो ये नए स्टैंडर्ड हैं जिसपे गाइडेंस, जिसपे पहले कोई स्टैंडर्ड नहीं था। इंड एएस 27, इंड एएस 29। अगर मैं बात करूं हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज की, हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी क्या होती है? जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, घाना। अगर एसआर ग्रुप की बात करूं, एसआर ग्रुप हैज लॉट मेनी सब्सिडरी इन जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे में अगर कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है, जिम्बाब्वे की जो इकोनॉमी हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी, हाइपर इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है कि 3 साल में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 100% या उससे ज्यादा बढ़ जाए तो हम उसको हाइपर इन्फ्लेशनरी कहते हैं, जहां मनी की वैल्यू डी वैल्यू हो जाए। सो इंड एएस और आईएफआरएस में एक स्टैंडर्ड है इंड एएस 29 जो एएस में नहीं था। वो बात करता है अगर आप हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी में ऑपरेट करते हो तो आपको अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करनी है, आपको बैलेंस शीट और पीएनएल को कैसे एडजस्ट करना है। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कोई स्टैंडर्ड है? जब मैं कुछ लोगों से पूछता हूं वो कहते हैं सर AS 30, 31, 32 3 स्टैंडर्ड है। लेट मी टेल यू, AS 30, 31 एंड 32 वर नेवर नोटिफाइड, वो कभी भी नोटिफाई नहीं हुए। दोज वर रिकमेंडेटरी इन नेचर। और इंस्टीट्यूट का मई 2015 में गाइडेंस नोट आया था, गाइडेंस नोट ऑन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, और अकॉर्डिंग टू द प्रीफेस ऑफ द गाइडेंस नोट even AS 30, 31, 32 is not recommendatory. So there is no AS 30, 31, 32 existing as of now. 30, 31, 32 is not applicable. कभी notify नहीं हुए। लेकिन Ind AS में there are 3 standard on financial instrument. One is Ind AS 32, Ind AS 109 and Ind AS 107. एक और बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है एग्रीकल्चर। अगर मैं एग्रीकल्चर अकाउंटिंग की बात करूं, if cow has given birth to a calf, agriculture includes biological asset also. If cow has given birth to a calf, आप accounting standard में उसकी क्या accounting करते हो? Since there is no any accounting standard on agriculture,
एग्रीकल्चर पे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ही नहीं, सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन है। लेकिन एक सेपरेट स्टैंडर्ड है जो एग्रीकल्चर अकाउंटिंग की बात करता है, इंड AS 41, और ये कहता है कि आपको उस काफ की भी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। उसकी किस पे करोगे? फेयर वैल्यू पे। अगर आप उस काफ को खरीद के लाते तो कितने का लाते? फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए का। सो अकाउंटिंग विल बी काफ अकाउंट डेबिट, लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट 1000 to other income 1000 because you have not paid anything. Okay, so शेयर बेस्ड पेमेंट आपने सुना होगा, कुछ कंपनीज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान देती हैं। ये जितने भी स्टार्टअप हैं, स्टार्टअप अपने एम्प्लॉय को 2 मॉडल पे रखते हैं, कहते हैं हम आपको इतनी सैलरी देंगे प्लस में इतनी हम आपको इतने स्टॉक ऑप्शन प्लान देंगे। सो जितने भी स्टॉक ऑप्शन प्लान है, इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है? हमारे पास एक गाइडेंस नोट है, गाइडेंस नोट ऑन एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट, बट अंडर इंड AS there is a full-fledged standard which talks about accounting for share-based payments. Okay, insurance contract. अगर आपका कोई इंश्योरेंस कंपनी क्लाइंट है, so under accounting standard there is no any standard which talks about how to account for, how to do the accounting for insurance company. There is a guidance note, but under ind AS there is a separate standard, ind AS 104, which talks about accounting for insurance contract. Ind AS 106 which talks about exploration for and evaluation of mineral resources. हमारे पास एक गाइडेंस नोट है अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गाइडेंस नोट ऑन ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, जो कि ONGC और रिलायंस के लिए आया था। गाइडेंस नोट ऑन ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। ओके, सो फेयर वैल्यू मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं, फेयर वैल्यू का जो वर्ड है फेयर वैल्यू, सो इट हैज बीन यूज्ड at so many places in accounting standard also, but it is not mandatory. But under ind AS, so fair value is part and parcel of the life of the Indian accounting standards. So लगभग 15 से ज्यादा स्टैंडर्ड में फेयर वैल्यू की बात की गई है, और फेयर वैल्यू मेजरमेंट पे एक पूरा स्टैंडर्ड है इंड AS 113। अगर मैं लेवीज की बात करूं, चुंगी की लेवीज, अगर मैं लेवीज की बात करूं तो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है इंड AS 114 जो बात करता है रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स की। But under accounting standard, we don't have any accounting standard on accounting for levies, accounting for regulatory deferral accounts. So this was all about the new changes, or this was all about the new standard which is there in Indian accounting standard. So this is all from my side. So now the time has come to take up the queries in the next 15 minutes. So over to you. You can see. Yes, sir. So let me look at the Q&A box. Yes, sir. So Vijay Goyal ji is asking, sir, sales return, sales booked in the last year, whether it is a prior period or can be reduced from the current year sales. Sir, if the sales has been booked in the last year, revenue has been recognized in the last year, and the sales return is happening in the current year, so it will not be recorded as a prior period. It has to be shown as a it has to be shown as a current period expense. So it could be netted off from the current year sales. What about revenue recognition between 22nd March to 31st March 20? So Pradeep ji, as far as revenue recognition is concerned, so the lockdown period has been started from 23rd March. तो अगर 23 मार्च से लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी इफ यू आर डीलिंग इनटू अ नेसेसरी कमोडिटी, ऑफ कोर्स रेवेन्यू रिकॉग्निशन विल कम इनटू पिक्चर। लेकिन आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हुए ये देखना है कि अगर आपको लगता है कलेक्टिबिलिटी इज नॉट सर्टेन, इन दैट केस यू विल नॉट recognize revenue and you have to defer the revenue recognition. But if you think that collectibility is certain, my customer will pay me, okay, so this COVID is not impacting my customer because my customer are also dealing in the necessary goods, okay, so in that case you can recognize the revenue. Otherwise you should not recognize revenue if the collectibility is not certain, and you need to postpone the recognition or defer the recognition of revenue. So Vijay Goyal ji is asking another question: if any expense is incurred without ownership, like expense on leased railway siding or expense incurred on bringing electricity line in which ownership is with the electricity board, whether such expense can be capitalized? So Vijay ji, I am taking an example. आपने एक ऑफिस किराए पे लिया और आपने उस ऑफिस में कुछ लीज होल्ड इंप्रूवमेंट कराई है. So the ownership is not with you. ऑनरशिप आपकी नहीं है, लेकिन आपने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, क्योंकि आपको ऑफिस ऑपरेट करना है, आपने जो लीज होल्ड इंप्रूवमेंट कराया है 10 साल के लिए या 5 साल के लिए, आप इसको कैपिटलाइज करेंगे एज अ लीज होल्ड इंप्रूवमेंट, ओके, और आप इसको अमोर्टाइज करेंगे, आप इसको राइट ऑफ करेंगे, चार्ज ऑफ करेंगे इन द नेक्स्ट 5 years और 10 years, व्हाटएवर द केस मे बी.
So any exemption for Deepak ji is asking, sir, any exemption for obtaining actuarial valuation for gratuity based on employee strength, like 10 employees or so? Yes. So there was an exemption for level 3 companies or level 2 companies. If the company was having a less than 50 employees, then actuarial valuation will not be required, and the company can recognize gratuity expense as per their best estimation. So Deepak ji is again asking, kindly clarify on whether gratuity provision is required to be made by a company from day one of employment of the employee or on completion of 5 years of service by the employee. Deepak ji, अगर मैं बात करूं एक्चुअरियल वैल्यूएशन की या ग्रेचुटी प्रोविजन की, सो ग्रेचुटी प्रोविजन हैज टू बी मेड फ्रॉम द डे वन. अगर आप एक्चुअरियल वैल्यूएशन में भी देखते हैं, द मेथड इज प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड, और वो क्या कहता है कि जैसे जैसे एम्प्लॉय अपनी सर्विस अक्रू करता जा रहा है, जैसे जैसे एम्प्लॉय अपनी सर्विस देता है, उसकी जो लायबिलिटी है ग्रेचुटी की वो भी अक्रू होती जाती है. ओके, सो व्हेनेवर द एम्प्लॉय इज रेंडरिंग द सर्विस, यू नीड टू अक्रू द gratuity provision also. So Dharmendra ji is asking, any guidance note for the valuation of stock which could not be counted on 31st March due to COVID? Yes, Dharmendra ji. ICI has issued a guidance note, or ICI has issued a advisory on this evaluation of inventories. I think in June or July. If I correctly recall, it was in June or July something. So I have answered all the queries which was there in Q&A box. If any of you have a query as of now, so we can discuss. Otherwise, so over to Arun ji or Rajesh ji for the, finishing formalities. So thank you very much. Yes, thank you very much, sir. If there is any question, you can ask to the speaker. Still, there is 10 minutes remaining. So if any question are there, I request the member participants that you can raise your queries, and the speaker is available right now. And in the meantime, I really thankful to C. Alok Garg ji for sparing his time. Secondly, we are very, we congratulate you first that you have gone through in just a span of 2 hours, the walk through all the AS and also the INDAS. So it is a remarkable thing you have done, and we are very thankful to you that you have shared your wisdom and your knowledge about the topic with your. So we are very thankful to you, and the studies circle is very thankful to you, and the participants are enlightened with your knowledge. And I think now no questions. Yeah. So I request Rajesh Kumar Arora ji to give a formal vote of thanks to C. Alok Garg ji. Hello, sir. I, on behalf of Northex CA Study Circle and our CA fraternity members, with our brother Arunji, Ashokji, and Ramanji, thank you very much for your sparing time in our current today's seminars. Since you have discussed a great topic, we are not enlightened with the AS and Indian AS, which is a great difference. We think that AS and Indian AS both are same, but you have enlightened us. There is a great difference, and we have to take into account all the difference in our audit reports and other things, sir. So I, on behalf of the attendee also, and Devinder, thank you very much. And again, we will give you call to spare again time to attend our next webinar. Thank you very much, sir. Rajesh sir, just announce next It is meeting. always my pleasure, sir. Thank you, sir. Also request to announce the next meeting. Sir, online वो तो दे दो sir को Momento book के. Yeah. So the world is actually going virtual. So we are also giving a virtual certificate and this honor to you, sir, and accept this Thank you, all sir. virtual trophy to you. Trophy to you, sir. Great, sir. It means a lot. Thank you so much. रमन जी, नेक्स्ट सेमिनार का बताइए सर. So next seminar on the 24th December 2020, Thursday, from the same timing, 6 p.m. to 8 p.m. And
The speaker would be Mr. R.N. Dash, retired IRS, ex-CCIT, ex-chairman Tribunal of PMLA and Benami Laws. Ashwini Taneja ji, ex-member ITAT, and Shri Amit Khemka ji is advocate, and it is for money laundering law in India and role of CA and tax law in handling the same, and its therapy with Black Money Act and Benami Law, Companies Act and Income Tax Act. So this is going to be a very useful section which will integrate all the relevant provisioning of the law and from the different enactments for that is for the core of money laundering law in India. So thank you very much, all the participants, and thank you Thank you, for Alok ji. attending, and we will meet in the next seminar. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.